اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول کا جو ہے لاسٹ پارٹ ہے، آج اس کی آخری قسط ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں اس تمغر کی لاسٹ ایپیسوڈ کو۔ اماں بھی میری وجہ سے آپ التمش سے ناراض مت ہوں، بہت اچھے ہیں، سب کے خیال بھی رکھتے ہیں، بس میرا خیال رکھنا نہیں آیا نے، یہ اس نے دل میں کہا تھا، لیکن پہلی بار باتیں اس نے باواز بلند اماں بھی سے کہی تھی۔ وہ حسام کی قاتل کی بہن کو کیسے سر پہ بٹھا سکتے ہیں؟ میں تو کبھی اس لڑکی کو بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گا، وہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے، اماں بی نے اٹل انداز میں کہا، اور ویل چیل دے غلطی کمرے باہر جانے لگے۔ جب نگینے کے خوبصورت اور سحر انگیز آواز ان کے سماعت میں اماں بھی اس نے بھی اس لڑکی کا قصور، وہ کیوں ساری زندگی سب کے حد کا میز اور تنفر زدہ لہجے برداشت کرے؟ میں بھی ایک لڑکی ہوں نا، کل کو اگر میرا بھائی کسی کو مار دیتا ہے، پھر اگر اسی طرح میں بھی کسی کی انجانی انسان کا سپورٹ کر دیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے بھائی نے گناہ کیا ہے، اس انصاف کے تقاضے پہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ وہ کم عمر لڑکی بلا کسی کا کیا بگاڑے گی جو اپنی زندگی تک نہیں سنوار سکتی؟ آپ میری خاطر ایک دبا ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں، آخر کیوں ہم سب اس لڑکی کو نگاہ ٹھکا رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ایک بے بس اور لاچار لڑکی ہے؟ نگینہ قدیمہ اور نرم انداز اماں بی کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ پہلی بار وہ مستب انداز میں نادی کے متعلق سوچنے میں مجبور تھی، کیونکہ نگینہ کی باتیں ٹھیک ہے تو تھی، اماں بی خود بھی تو ایک عورت تھی، تو کیسے اتنی دیر تک ایک بے قصور لڑکی کو سزا دے سکتی تھی؟ اب میں چلتی ہوں، بابا جان انتظار کر رہے ہیں میرا۔ نگینہ ان کا چھڑیاں زدہ ہاتھ چوم کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بین ہو گئی تھی اب اماں بی کی جانب سے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اماں بی نے اس کی باتیں ذہن نشین کر لی ہیں۔ آج نگینہ واپس اپنے گھر جا رہی تھی، اس کے چہرے پر سادگی دکھ کے دور دور تک تاثر موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ مطمئن تھی اپنے فیصلے سے۔ اسے یہ خوشی بھی تھی کہ اس نے اپنی محبت کو خود رد کیا ہے، جبکہ بے شک کسی بھی وجوہات کی بنا پر، لیکن التمش اس کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہوئے تھے اور نگینہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اپنے بابا اور ماں کے ساتھ واپس روانہ ہوگی، جبکہ اشر نے اماں بی کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر شوخی سے بول پڑا، ایسے اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے اماں بی؟ مجھ معصوم کی شادی کروا دیں، پھر آپ کی اداسی اور میری تنہائی دور کرنے کا سامان ہو جائے گا۔ اس نے ساتھ ہی مستنی آہ بھری، جس پر اماں بی کے لبوں پر محبت سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شریر کہیں کا، وہ بڑبڑائی۔ نادیہ نے التمش کے سیل فون سے ڈاکٹر کو کال کر کے خود بڑی حویلی بلا لیا، اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر بڑی حویلی پہنچ گئے، جبکہ اس دوران التمش کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے صوفے کی پشت سے کمر ٹکائے خاموش بیٹھے تھے۔ ان کا دل بوجھل ہو رہا تھا آج، اوپر سے انہیں یقین تھا کہ ان کے دونوں گھٹنے بری طرح سے زخمی ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے تو نادیہ کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ کچن کی جانب مڑ گئی۔ ان کی آنکھیں اور ناک رونے کی وجہ سے سر ہو چکے تھے۔ کچن میں کوئی نہیں تھا، صدف بھی رات کا کھانا بنا لینے کے بعد واپس کوارٹر چلی گئی تھی۔ نادیہ نے قورمہ گرم کی اور ساتھ ہی تازہ روٹی بنانے لگی۔ اسے معلوم تھا التمش نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اسے جلدی جلدی روٹیاں بنا لینے کے بعد اور ٹرے میں کھانا کے مختلف لازمات سجا کر التمش کی کمرے کی سمجھ بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے ڈاکٹر صاحب کو حویلی کے خارجی دروازے کی سمجھ جاتے دیکھ لیا تھا۔ گہرے سانس خارج کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر التمش کی گھٹنوں کی ڈریسنگ کر کے جا چکے تھے اور آڑے ترچھے صوفے پہ نیند رات تھے۔ جب نادیہ نے ان کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی، وہ چونکہ اور نیند سے ہمار آلود آنکھوں سے نادیہ کو گننے لگے، کھانا کھا لیں۔ وہ منہ پھلائے ہی گویا ہوئی۔ التمش نے اس کے پھیلے منہ کو دیکھ کر بمشکل ہنسی دبائی۔ آج اور ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھے اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر نادیہ کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے اپنے برابر بٹھا چکے تھے۔ التمش کے اس طرح ہاتھ تھامنے پر وہ چونکی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نادیہ نے التمش کے سامنے مخصوص چند لمحے ہلکے میں اتارے تھے، اس کے بعد کھانے کے خالی برتن اٹھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب التمش نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے پوچھا تھا، میں سونے جا رہی تھی، وہ سر جھکاتے ہی منہ بسر کر بولی، تو تمہیں سونے کے لیے اس کمرے سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہاں بھی تو سو سکتی ہو۔ التمش نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے مضبوطی میں تھام لیا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی، نادیہ چہلائی، بہت زور سے لگا تھا نا؟ ان کا اشارہ نادیہ کے سر و گال کے سمت تھا، جو ابھی تک سر ہوا تھا۔ شاید التمش نے تھپڑ ہی اتنی شدت سے مارا تھا، یا پھر نادیہ کی ضبط کا رنگ تھا یہ۔ پہلی بار تھوڑی لگا ہے، اس کا لہجہ بھی کیا تھا، دوسری بار لگا ہے لیکن اگر تم بچوں کی طرح ضد نہیں کرتی تو آج تم ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر نادیہ کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ ان کی ٹانگ میں ابھی بھی تکلیف تھی، پر التمش اسے فرمائش کیے ہوئے تھے، آپ بیٹھ جائیں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو آرام کرنے کا کہا ہے۔ نادیہ نے پہلے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر التمش کے مضبوط گرفت میں قید تھا، پھر گہری سانس خارج کرتی التمش کو گھورنے لگی، جیسے وہ التمش کو باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ التمش ہٹو کا یہ چھوٹے موٹے زخم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں تو ہوں ہی وہ پہاڑ جتنا دکھ اور کرب جھیلنے کے لیے بعد بھی زندہ ہوں۔ نادیہ کے بات پر زخمی مسکراہٹ التمش کے ہونٹوں پہ رنگنے لگی۔ آپ ایسا تو نہ کہیں، نادیہ نے خشمی نگاہوں سے انہیں گھورا۔
फिर कैसे कहूँ? नादिया के करीब जाकर इसके बालों के शरीर लिटे कानों के पीछे अड़सते हुए मसनूई संजीदे चेहरे पर तारीफ करते हुए बोले, वो आपकी टांग? नादिया ने अल्तमश की मानी है जिसारों किताब ना लाते हुए छुप कर कहा, मेरी टांग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वजूद का हिस्सा है और मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि ये छोटे मोटे जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नादिया को शाने से थाम कर इन्होंने नरमी से कहा तो नादिया खामोश होगी, लेकिन नादिया की आंखें अल्तमश के वजी और खूबसूरत चेहरे पर मरकूज थी। कुछ कहना चाहती हो? इन्होंने सॉरी निगाहों इस पर डाली जी। नादिया ने शर्माई घबराई सी सीधी इनके दिल के तार छेड़ रही थी। कौन कह सकता था कुछ देर पहले तक ये शहजादा नादिया के खून का प्यासा बना हुआ था। कौन कह सकता कि वही शहजादा था जो खुद को सफाक और बेहेस जैसे नाम देता था। क्या कहना चाहती हो? बगैर किसी डर और खौफ के कह दो। नादिया इन्होंने नादिया की दाढ़ बांधी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अल्तमश। नादिया आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन आपके ज़ाहिर से ज़्यादा आपकी बातन ने मुझे मुतासर किया। पहले दिन आपके सितम की नासाफी अगर मैं एक जानब रख दूं तो हक बजाते। वो बेरबत बोले जा रहे थे। अल्तमश हासिल दिलचस्पी गाँव से इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखने में मगन था। नादिया ने इसके बाजू आसिकी से थाम कर इसे बेड पर बिठाया और खुद भी इसके बराबर बैठ की। आपका वो बेसमेंट वाला थप्पड़ मुझे तोड़ फोड़ कर शिकार कर चुका था, इस बात से मैं इनकारी नहीं हूँ। लेकिन अल्तमश आपको मालूम है आपके अंदर कोई जलालत नहीं भरी हुई। मैं बीवी थी आपकी, लेकिन आपसे पहले मैं एक खून बहा में आई लड़की थी जिसके साथ जैसे चाहे आप बर्ताव कर सकते थे, क्योंकि मैं तो एक खूनी रिश्तों को खैर बात के कर आई थी। आप जब चाहे मेरी इज्जत नफ्स मजरूह कर सकते थे। आपके पास बहुत से मौके थे मुझे जंज करने के लिए, मेरी ज़ात की तौहीन करने के लिए, मेरी इज्जत नफ्स को कुचलने के लिए, लेकिन आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। नादिया के बलक हल्के में आंसुओं का बंदा अटक गया। अल्तमश अभी खामोश थे। अब की बार नादिया ने इनका हाथ थामा हुआ था और अल्तमश ऑफ वाइट शलवार कमीज में मबलूस, खुनिया तक बाजू फोल्ड किए, खासी पुरकश और जाज़ब नजर दिखाई दे रहे थे। नादिया को अपनी किस्मत रश्क हो रहा था। वो इसकी यही बात अल्तमश ने भी नोट की थी कि वो हौले से मुस्कुराए। और जो मैंने अभी तुम पर हाथ उठाया इसलिए क्या? अल्तमश का लहजा थकन ज़्यादा था, वो जैसे वो खुद भी इस गलती पर परेशान थे। पहला बार तो थप्पड़ आपकी गलती थी, लेकिन दूसरा वाला थप्पड़ शायद मैं मुस्तहिक थी, इसलिए पहले थप्पड़ की नाराज़ हूँ, लेकिन दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं। नादी के दिल चाह रहा था अल्तमश के बाल बिगाड़ दे, लेकिन हया और जज्जे के दरमियान में आ रही थी, और शायद अल्तमश के गुस्से का भी खौफ था इसे। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? अल्तमश ने इसका हाथ अपने सर पर रखते हुए शरारती लहजे में इस्तफार किया और साथ ही आंखें बंद कर गए, जैसे वो बंद आंखों से नादिया के खुले हुए मुंह और हैरान तासर को महसूस कर रहे हों। नादिया ने इनके घने बाल बिगाड़ दिए। अल्तमश का असर और सफ़ेद प्यारा सा चेहरा नादिया के रूबरू था और उसके बालों से छेड़छाड़ कर रही थी। जब अल्तमश ने महफूज नज़रों से घूरा, अल्तमश आप ऐसे नहीं देखें प्लीज़, नादिया शर्मिंदगी आवाज़ में बोली। मुझे हिसाम से मोहब्बत थी हमेशा से, वो मेरी कुल कायनात थे नादिया। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए मानी नहीं रहती, क्योंकि अब कम से कम मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि तुम मेरे लिए अहम नहीं हो। शायद तुम वो लड़की हो जो हिसाम के बाद मेरी ज़िंदगी में आई। मेरी ज़िंदगी में हिसाम की जगह कोई नहीं ले सकता। शायद मेरी औलाद भी कभी मेरे हिसाम की जगह हारी पुरज नहीं कर सकती। पता है नादिया, इंसान जब एक फ़र्द के लिए अपनी ज़िंदगी तक महसूस कर दे, मैंने हिसाम के लिए खुद को रद्द किया दिया था। अपने जान की मौत के बाद मुझे लगने लगा था मैं जिंदा कैसे हूँ। तब मैं इतना छोटा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि खुद का सहारा बन सकूं। और तब मैंने अपने आंसू खुद साफ किए हिसाम की खातिर। बचपन में वो रात के वो बहुत रोते थे। कभी कभी बाबा गहरी नींद में होते थे तो मैं हिसाम को उठाए सारी सारी रात जागता था, क्योंकि हिसाम को आदत थी दिन में सोने की, रात में जागने की। इस सब में मुझे सुबह कॉलेज भी जाना होता था, फिर वापस आकर हिसाम की देखभाल में लग जाता। बाबा जानी पंचायत के सरपंच थे, तो इन्हें भी मर्दान खाने की वक्त देना पड़ता था। आहिस्ता से हिसाम के गिर्द मेरी जिंदगी के एक महसूस दायरा कार बन गया, और जब मैं कुछ संभला ही तो था तो बाबा जाने हाल के हकीकत से जा मिले। वह दिन भी मेरी जिंदगी का एक तारीख और खौफनाक दिन था, पर तब भी मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि हिसाम की शुरू तो मेरे पास जीने की वजह मौजूद थी। बाबा जानी ने मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे हुस्साम इनकी जिंदगी थे। हमारी खातिर इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। वो पल भर को गहरा सांस खींचकर खामोश हो गई। नादिया हौनकों की तरह सामने बैठे शानदार शहजादे को देख रही थी। अल्तमश की सफेद रंग आंखें में हल्की सी नीमी भी तैर रही थी जब नादिया की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ आया था। फिर आगे क्या हुआ अल्तमश? नादिया ने इनका हाथ को सलाते हुए पूछा। फिर हसाम को शौक चढ़ा के मैं शादी कर लूँ, इनके लाला जान शादी कर ले। इन्होंने तो कोई लड़की भी ढूंढ ली थी।
ان کا کہنا تھا کوئی لڑکی میرے لیے بنائی گئی ہے۔ التمش کی بات پر نادیہ کا دھیان فوراً حسام اپنی ملاقات کے سمجھ گیا۔ جس طرح وہ نادیہ سے اس کے نام پوچھ رہے تھے اور جس طرح سے وہ نادیہ کے سامنے آنکھیں جگا کر بات کرتے تھے، نادیہ جمع سا شاید وہ لڑکی نادیہ ہی تھی جو حسام نے اپنے لالا جان کے لیے پسند کی تھی، پر اپنی سوچ پر خود ہی سر جھٹکتی التماش کو دکھنے لگی۔ نادیہ راہم سیال بھی میرے لیے بہت اہم تھا۔ وہ لڑکا بے شک میرا ملازم تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ برابر برتاؤ تک نہیں کیا تھا، لیکن پھر اس نے مجھ سے میرے لخت جگر کو چھین لیا۔ میں حسام کو دیکھ کر زندہ تھا نادیہ، اس انسان کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، مر بھی سکتا تھا۔ ایسے میں اگر وہ شخص اچانک پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے تو میرے جیسے انسان بدحواس ہو جاتے ہیں، زندگی کے کلر باری نظر ہو جاتے ہیں، اور اس کا اندازہ بس اسی کو ہوتا ہے جس کے ساتھ گزر رہی ساری زندگی، اب تک کے سب رشتے، سب بےمعنی ہو گئے ہیں میرے لیے۔ بس ایک ہی جواب چاہتا ہوں کہ آخر کیوں خدا نے مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھین لی۔ وہ نادی کے سامنے سر جھکائے اپنے اندر کا کرب، اپنی بے بسی، دکھ باہر نکالنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لہجے وہی تھا جسے وہ نادیہ کو کہا کر رہے تھے کہ نادیہ کو بھی یہ اپنی باتوں کے باور کرانا چاہ رہے تھے کہ راہم کا ذکر التمش کے سامنے آندہ نہ کیا جائے۔ پر اولاد والی بات نادیہ کے ہاتھ لرزتے تھے۔ وہ التمش نے ان کے ہاتھوں کی گھبراہٹ کو واضح محسوس کیا تھا۔ دونوں کے بیچ ایک بار پھر سے بے نام سی خاموشی چھا گئی۔ التمش نادیہ نے جھجکتے ہوئے التمش کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے پر وہ زبردستی مسکرائے تھے، جبکہ نادیہ نے اپنے آنسو صاف نہیں کیے تھے۔ آپ کو معلوم ہے زندگی میں کچھ لوگ خوشیوں کے ماند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص، ان کی باتیں تعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظوں میں، زندگی کے ہر پہلو میں مہکتی رہتی ہیں۔ کیونکہ شام تو آپ کی روح کا حصہ تھے، پھر آپ بھی افسردہ ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے لالا جی کے پاس رہتے ہوں گے۔ نادیہ کی محبت پاش نظریں التماش کے چہرے پر جم چکی تھی۔ لیکن مجھے وہ میرے ساتھ میرے ہم قدم چاہیے تھے زندگی کے ہر موڑ پر۔ حسام نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، وہ چھوڑ گیا مجھے۔ ان کی مجبوری کیا مجبوری تھی؟ التمش نے زخمی انداز میں کہا۔ اس میں نہ آپ کا قصور ہے، نہ حسام کی غلطی ہے۔ اللہ جی نے یہی لکھا کہ کہانی لکھی ہے، ادھوری تھی۔ لیکن التمش یقین کریں، وہ ہر پر حل ہمیں اپنے لالا جان کے آس پاس رہتے ہوں گے۔ نادی کی نرم دھیمی آواز التمش کے دلکشی سے مسکرائے۔ چلیں آپ آرام کریں، میں بھی سونے جا رہی ہوں، نادی نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا۔ اب التمش کی آنکھوں میں کوئی اور ہی کہانی دکھ رہی تھی۔ التمش نے مانی خیز اور نرم گرم نگاہ نادی کے سراپے کے آر پار ہو رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ تو تم پھر جاؤ گی؟ ان کے لہجے میں اعتماد تھا، یقین تھا۔ نادی نے التجائی نگاہوں سے التمش کو دیکھا۔ میں تم سے کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، میں تمہارا انتظار کر لوں گا، التمش نے اس کا ہاتھ آزاد کرتے ہوئے کہا، سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ آپ ایسے انتظار کریں گے؟ منہ پھیلا کر نادی نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ التمش نے اسے گورا جو شرمندگی میں مسکراہٹ ہونٹوں پر سے جائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ نہیں تو میں کیوں چیلنج کروں گی؟ آپ کرتے رہیں میرے انتظار، میں جا رہی ہوں۔ نادی نے موڈ خاصا بگڑ گیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے دھڑلے سے اپنی محبت کا اظہار التمش کے سامنے کیا تھا، اور اب التمش اسے کتنی آسانی سے جانے کہہ رہے تھے۔ میں انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں بالکل بھی، التمش نے نادی کے ناک دباتے ہوئے کہا۔ ان کی خاصی مانی حیض دلچسپ نگاہیں نادی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا محبت کے لیے میں آپ کا انتخاب کبھی نہیں ہو سکتی۔ نادی نے انہیں اپنے قریب آتا دیکھا تو مبصر کہا۔ نادیہ نے انہیں اس دن کا تانا دیا جب التمش نے اسے ٹیرس پر کہا تھا کہ وہ کبھی بھی نادیہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہاں، کیونکہ تب تو مجھے زہر لگتی تھی، اس لیے۔ التمش نے کندھے اچھائے۔ نادیہ کا منہ پھر سے کھل گیا۔ التمش کی خود اعتمادی دیکھ کر وہ کیسے دلدل سے نادی کو زہر کر رہے تھے۔ تو اب میں زہر ہی ہوں، اس نے دانت کچا کر کہا، جس پر التمش کا فرق شفاف کا ایک ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ نادی مستحر ہو گئی تھی، وہ پہلے سے التمش کی شخصیت اور تھیکے نئے نقش پر دل ہار بیٹھی تھی، اوپر سے اتنی خوبصورت اور جاندار کہک سننے کے بعد اس کے دل نے ایک بھیڑ نصب کی تھی۔ نہیں، ابھی تم مجھے زہر نہیں لگتی، ابھی تو تم مجھے شہد لگتی ہو، التمش نے محسوس مسکراہٹ لباں سجاتے ہوئے کہا۔ ان کی بے باکی پر نادیہ جل بن ہی تو کی تھی، اور سر جھٹکتی واپس جانے کے لیے لگی۔ التمش نے اسے بیڈ پر اٹھا دیا۔ مجھے آج تنگ مت کرو نادیہ، تنبیہ کی گئی۔ میں نے تنگ کی کب کیا؟ وہ پنچھاڑ رہے گی نادیہ اس کی بات پر۔ بار بار اچھل کود کون کر رہا ہے؟ پہلے ہی ٹانگ درد کر رہی ہے۔ انہوں نے نادیہ کو آنکھیں دکھائی۔ میں اچھل کود نہیں کر رہی، بلکہ صدف کے پاس جا رہی ہوں۔ ترکی بترکی جوابی کارروائی کی۔ کیوں؟ نکاح صدف کے ساتھ کیا تھا کیا؟ التمش نے بنا لہجے میں کہا۔ نہیں، لیکن التمش پیشکش کرتے کو برکھلائی۔ التمش مخصوص نگاہ سے
اس کے فق ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ گڈ، اب اسے ٹائم دو۔ جس کے ساتھ نکاح کیا ہے، التمش نے نادی کی رائے فرار کے تمام راستے مسترد کر دیے۔ نادی کے پلکیں سایہ فلک تھی۔ التمش، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں التمش تک پہنچی۔ بولو، باری گبرو لہجے اس کے کانوں کے بے حد قریب گونجا تھا، لیکن پھر وہ خاموش رہی۔ التمش نے اس کی خاموشی کو حامد تصور کر لیا تھا، اور آخر کر ان دونوں کے بیچ جو اتنے دنوں سے ایک خود ساختہ خائل تھا، وہ دوبار زمین بوس ہو چکی، دکھوں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ السلام علیکم اماں بھی، اشر ڈائننگ روم میں داخل ہوتے بولا۔ وعلیکم السلام۔ اماں بھی کی شفیق آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیا سوچے جا رہے؟ صبح صبح اشر نے ان کے غائب دماغی پر چوٹ کے نگینے کے متعلق سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس بچی کی قسمت میں۔ امی بھی کا لہجہ خاصا گلکور تھا۔ اماں بھی، اللہ پاک نے اس کے لیے جو بھی لکھا رکھا ہے وہ بہترین ہوگا، اشر نے رسانہ سے کہا، لیکن میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اماں بھی نے بیٹے کو سنجیدہ سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہی تھی آپ؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اشر نے انار کا فریش جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ نگینہ کا ہاتھ میں تمہارے لیے فیصلے سے مانگ لوں۔ اماں بھی کی بات سن اشر کے گلے میں جوس اٹک گیا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگا۔ اماں بھی بیٹے کے بش لائی پانی کے گلاس سے چھپکے سمجھ بڑھایا۔ اماں بھی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد شراب نارمل ہونے کے بعد وہ دبے دبے غصے سے بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر کمی کیا ہے نگینہ میں؟ اماں بھی نے چنکارتے ہوئے اشر کو کہا، میں نے ایسے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے ہمیشہ نگینہ کو التمش کے ساتھ سوچا ہے۔ اشر نے ٹھہرے انداز کہا، جیسے وہ جذباتی ہو کر ہوش نہیں کروانا چاہتا تھا، لیکن نگینہ اور التمش اب اس تعلق سے لا تعلق کا اظہار کر چکے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بھتیجی کسی اور کے گھر رخصتوں کو جائے آج، اس لیے آج کے بعد میرے سامنے کوئی بہانہ بازی نہیں کرنا۔ اماں بی نے اشر کو سخت اور ڈوٹوک انداز میں واور کرایا، گویا اب اشر کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اور نہ ہی نگینہ کبھی اس رشتے کے لیے رضامند ہوگی۔ اشر نے اپنی کوشش کی تھی، اس سب سے تم بے فکر ہو جاؤ، نگینہ کو کیسے راضی کرنا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اب اگر تم نے پھر سے کوئی اگر مگر کیا، کلاب میرے سامنے کیا، تو میں تمہیں اس گھر اور جائیداد سے آگ کر دوں گی، کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دوسرے جانب اشر سر ہاتھوں میں گرا چکا تھا، اس وقت اسے التمش پر جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا، بے رحم ظالم انسان، اس نے دل ہی دل میں التمش کو کڑک کر کہا۔ چہرہ ڈگلتا ہوا حویلی سے باہر نکل آیا۔ سورج کی شعاعیں چھن چھن کرتی التمش کے چہرے پہ بکھر رہی تھی۔ التمش نے بزمزہ ہوتے ہوئے اپنی مخصوص روزمرہ عادت کے مطابق کشن ٹٹولنا چاہا، پر کشن کی جگہ نادیہ کا نرم و ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے کو وہ کشن کی طرح استعمال کر کے اپنے چہرے پر رکھ چکے تھے۔ نادیہ کے ایک ہاتھ سے آنکھیں مسلتی تھوڑا سا اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اسے قدمی ہاتھ اب بھی التمش کے چہرے پر دڑا ہوا تھا۔ نادیہ کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ رینگی التمش کو دیکھ کر۔ دوسری جانب التمش جنہیں جہاں سے بے خبر نیند خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ نادیہ نے اپنا ہاتھ ان کی چہرے سے ہٹانے کا سوچا، پر التمش کی نیند خراب ہونے کا سوچ کر وہ اپنی خیال جھٹک گئی۔ اب وہ فرصت سے اس شہزادے کے ایک ایک نقش کو دل میں اتار رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، اور مسخر ہو کر التمش کا وجیح چہرہ گھور رہی تھی۔ التمش نے ہولے سے آنکھیں کھلوا کی نادیہ پرکشش قدمی چہرہ سامنے دیکھا اور دلفریب انداز میں مسکرائی۔ صبح ہے، دھیمی آواز نادیہ کی سماعتوں میں بھری، لیکن ان کے لہجے میں جھلکتی شوخی اور شرارت کا بام تھے۔ نادیہ کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ صبح صبح یہ بجلیاں کیوں گرا رہی ہو اب؟ وہ مستعد ناراضگی سے بولے۔ نادیہ ان کی بات کو محفوظ سمجھ مزید چھپ گئی۔ تم اتنے دن سے کس کے کپڑے زیبتن کر رہی ہو؟ سوالی نگاہیں نادیہ پر ڈالی۔ صدف کے۔ نادیہ نے سر جھکا کہا، اوہ اچھا ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر میں تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں شاپنگ پر، وہ نرمی سے بولے۔ جبکہ التمش کے سیل فون پر کسی کا کال میسج ہوا، وہ بدمزہ ہو کر سائڈ ٹیبل پر سے سیل فون اٹھا کر کان سے لگا چکے تھے۔ السلام علیکم التمش بیٹا۔ فیصل صاحب کی گھبری آواز سن کر وہ جگہ سے اٹھ بیٹھے اور سہستے تھے۔ نادیہ کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا لیا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی التمش کے مضبوط گرفت میں مقیم تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نادیہ نے الجھن آمیز نظروں سے التمش کو دیکھا، جو سیل فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وارڈروب کے سامنے کھڑے تھے۔ کراچی جا رہا ہوں، راہم سیال کا سراغ مل گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے آئی جی صاحب کا میسج آیا تھا، التمش نے نادیہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ نادیہ یک دک رہے گی، اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب امڈ آیا۔ التمش تب تک واش روم میں گھس چکے تھے۔ نادیہ ابھی تک اسی زاویے میں بیٹھی بیڈ پر لیٹی رہی، اس کا وجود دم خود تھا۔ ساخت و جامد نظروں سے وہ کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے میں آئے، نادیہ کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ پورا دن اسی طرح لیٹی رہوگی؟ ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش اٹھانے کے بعد نادیہ کے وجود کو سرسری نگاہ ڈال کر بولے۔ نادیہ کو جواب نہیں دیا، اب دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ رک جاؤ نادیہ،
गबरू आवाज़ इस काने में गूंजी। वो अपनी जगह जम सी गई। इसने डिघुमाते कदमों कारपेट पर जम गए। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़े हुए हैं? कीमती परफ्यूम खुद पर स्प्रे करने के बाद साथ वो नादिया से मुखातिब थे। ऐसा कुछ नहीं। लाख कोशिश के बावजूद नादिया की आवाज़ भीगी। ऐसा है इधर आओ। बाजुब कफनिक्स लगाते हुए वो अपने पास आने का कह रहे थे। नादिया छोटे छोटे कदम उठाती उनके पास आई। इस वक्त वो ऐसे छोटे बच्चे की मिसाल लगी थी जो अपनी कीमती चीज के खो जाने का खौफ। अल्तमश ने आसिया से बाज गिर्द अपने मजबूत हिसारा कायम किया और नादिया का सर सुलाने लगे। जो मेरे रब ने लिखा है वही होगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दिली कैफियत, पर मेरी मजबूरी को भी समझो। इनका अंदाजा और लहजा बेहद नरम था। नादिया के आंसू रवा हो गए। आप जाएं, देर हो जाएगी आपको। इसने अल्तमश से अलग होते हुए धीमे लहजे आवाज में कहा। ऐसे कैसे जाऊं? पहले तुम रोना बंद करो यार। इसके आंसू साफ करते हुए मसनूई गुस्से से बोले। वो अभी से मातम गना क्यों हो रही हो? फिलहाल राहिम को सुराग मिला है। वो खुद अभी भी पुलिस की तहवील में नहीं है। मैं मुखिस आईजी से मुलाकात करने जा रहा हूँ। वो नहीं चाहते थे कि इस मासूम लड़की को और रसीद दी जाए, इसलिए अल्तमश ने नरमी से कहा। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आपको जो ठीक लगे वो करें। नादिया ने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। इसके बाद मुझे कराची भी रवाना होना है। नादिया महसूस इस्बाब में सर हिलाती और वॉशरूम में घुस गई। जमील अल्तमश साहब को इतला दो जाकर कि अशर साहब मर्दाना खाने में बैठे हैं। लाइन में खड़े हुए कर अशर ने अजलत में कहा, जबकि एसपी शेब भी अशर के साथ मौजूद थे। ठीक है साहब जी, मैं साहब को इतला देकर आता हूँ। जमील सादत मंदाना अंदाज में कहते मुड़े, जबकि अशर और शेब मर्दाना खाने की समझ बढ़ गई। सफेद रंग के आम से कपड़ों में मबलूस मरजाई सी लग रही थी, जबकि अल्तमश इससे मोहब्बत पाश निगाहों से दिल में उतार रहा था। नादिया अपने लिए लंबे रेशमी बालों को खुश कर दी अजरत में नीम बालों में बुर्श पहनने लगी थी। आराम से नादिया। इसके कामते हाथ देकर अल्तमश ने इसे डबते ही कहा। और आराम से बालों में बुर्श करके सर पर दुपट्टा टिकाए अल्तमश के पास आकर खड़ी होगी। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं। इन्होंने महफूज मुस्कुराहट बचाई। नादिया जबरदस्ती मुराए। दोनों ही सीढ़ियां अबूर करते डाइनिंग टेबल रूम में दाखिल हुए। सदफ की बेचैनी से आंखें फैल गई नादिया और अल्तमश के एक साथ देखकर। ऐसे क्यों देख रही हो? मेरी बीवी को नजर लगाने का इरादा है क्या? अल्तमश ने अपनी नश्त पर बैठते हुए सदफ से कहा। वो बेचारी हड़बड़ाकर नफी में सर लाने लगी। नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं, मैं खाना लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पर। सदफ सरपीट वापस किचन में गायब होगी। साहब जी, अशर साहब मर्दान खाने में आपका इंतजार कर रहे हैं। जमील ने सर झुकाए मुअद्दबाना अंदाज में कहा। इस वक्त अशर आया है, गोया उन्होंने जमील से ज्यादा खुद से सवाल किया। जी साहब जी, जमील ने फिर कहा। तो अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूँ। ग्रे कलर के शवार कमीज में बुरुस इस वक्त बेहद वजी और प्यारे लग रहे थे। इनकी जहानत से भरपूर आंखें में उलझन थी। तुम अच्छे से नाश्ता कर लेना, में मर्दाना खाने जाना पड़ा है का। अपनी जगह से खड़े होकर नादिया से मत लेकर नाश्ता। नादिया ने बेसाता कहा, बाद में कर लूंगा, तो अपना ख्याल रखना। दिल चाहे तो अपनी अम्मा से मिलने चली जाना, इनका दिल खुश हो जाएगा। इन्होंने संजीदगी से कहा। नादिया की नाक दबाते वहां से चले गए। सदफ ने भी अल्तमश की हरकत देख ली थी, जिस पर बाकायदा आंखों में हाथ रख खड़ी थी। नादिया ने सदफ दुगदा मुश्किल इसके दांतों तले हंसी दबाई थी। अस्सलाम वालेकुम। मर्दान खाने में दाखिल हुआ। वालेकुम सलाम। शेब ने उससे बगलगीर होते कहा। खैरियत है? अब अल्तमश ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ बात तुमसे पूछनी थी हिसाम के मर्डर के केस मुतालिक। ऐसे शेब ने कहा, जबकि अशर खामोशी से दोनों को देख रहे थे। पूछो, क्या पूछना चाह रहे थे? आए सब आजी साहब की कॉल मौसूल हुई थी मुझे, अभी कराची रवाना होने वाले थे। और साना से बोले, मेरी बात हो चुकी है आईजी साहब से, और हमें लगता है कि हिसाम का कातिल हम जिसे समझ रहे हैं वो नहीं है। गेम किसी और ने खेला है। शायद तुम भी इस बात से लाइलम हो। शेब ने अल्तमश को कोई थी निगाह से थे। क्या कहना चाहते हैं? तुम खुल के कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो उलझन अमेज निगाहों से शेब को घूर रहे थे। जिस आदमी ने तुम्हें वो वीडियो क्लिप दिखाई थी, क्या वो अभी भी यहाँ आ सकता है? शेब ने इनसे सवाल किया। हाँ, आ सकते हैं, लेकिन मुझे पता तो चले कि तुम क्या कहना चाहते हो। अल्तमश ने नौगारी से कहा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। तुम पहले इस आदमी को बुलाओ जिसने तुम्हें वो वीडियो क्लिप दिखाई थी। शेब ने फिर कहा। तो अल्तमश ने नवाज से कहकर गुलगैस खान को मर्दाना खाने में पेश होने का हुक्म सादर किया। अगले आधे घंटे में गुलगैस खान अल्तमश के सामने खड़े थे। गुलगैस खान बगैर किसी वजह की क्लब की तारीफ थी। अल्तमश समेत शेब ने भी ये चीज़ नोट की। हाँ गुलगैस खान, ये हिसाम को राहिम के कत्ल किया है, तब तुम जाए वकबर मौजूद थे? एसपी शेब ने दरअसल लहजे में कहा। जी साहब, हम वहीं मौजूद था। गुलगैस ने मजबूत अंदाज में कहा। अच्छा, तो तुम वहाँ खड़े होकर वीडियो क्लिप बनाने का होश रखते थे, लेकिन हिसाम की जिंदगी बचाने का तुम्हें ख्याल नहीं आया? शेब ने मखसूस पुलिस अफसर का सख्त गिलेज अपनाया। उल्टे हाथ का थप्पड़ गुलगैस खान के चेहरे पर सीध किया। हमने कुछ नहीं किया लाला जी। गुलगैस भागकर अल्तमश के पास गया और साथ ही इस खास बात अंदाज में बोला। मैंने कब कहा तुमने कुछ किया? मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, जब वीडियो क्लिप बनाने की हिम्मत थी तुम्हारे अंदर, तो हिसाम को बचाने में क्या मौत पड़ रही थी? एसपी शेब ने गुलगैस
को अपने रूबरू खड़े हो देखा। हम बेकसूर है साहब जी, वो गुड़गड़ाया। फिर वही बात, अच्छा सही है, मैंने मान लिया तुम बेकसूर हो, तो जो असली कसूरवार और कातिल है इसका नाम बताओ। एसपी शेब ने कसूरवार और कातिल पर जोर देते कहा। अब गुलगैस का रंग लट्ठे की मान सफेद पड़ चुका था, क्योंकि एसपी शेब हालत जलाल में दिखाई दे रहे थे। मेरे सामने झूठ मत बोलना, वरना अभी के भी घसीट के ऐसे मुकदमे में चालान कर दूंगा कि जिंदगी भर जेल की सलाहों के पीछे सड़ते रहोगे। वो दाड़े थे। हमने झूठ बोला था। दरअसल मियाँ दाद ने हमें रिश्वत दी थी और कहा था कि हम लाला जी के सामने ये बयान दी कि राहिम ने हसाम का लाला का कत्ल किया है, और जिस मोबाइल में वो वीडियो क्लिप था वो फ़ोन भी हमारा नहीं था, वो फ़ोन मियाँ दाद ने हमको दिया था। पुलिस मुहस एक पुलिस ऑफिसर की डोस और धमकी के सामने सारा सच लव वलेजे में घुल हो चुका था, जब कलतमश की कान साए साए करने लगे। मियाँ दाद को अच्छे से जानते थे। ये वही शख्स था जिसने गांव के एक मुर्सी शख्स की ज़मीन पर अपना कब्जा जमाया था। उसके बाद अल्तमश में बजनाल के सामने वो ज़मीन वापस उमर रसीद आदमी के हवाले कर दी थी। लेकिन इस छोटी सी बात की मियाँ दाद ने इन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। नवाज, जल्द से जल्द इस कमीने को घसीट कर मेरे सामने पेश करो। इनकी आंखें शोला बार थी, शहद रंग आंखों में चिंगारियां जल रही थी। जबत की वजह से अल्तमश की मुट्ठियां भीज गई थी। कुछ लम्हे बाद मियाँ दाद इनके सामने खड़े थे, फक होते चेहरे के साथ। लाला जी, आपने मुझे याद किया? पुरअतमादी में मैं गोया हुआ। हसाम को किसने कत्ल किया है मियाँ दाद? इस बार शेब की नहीं बल्कि अल्तमश की कारदार आवाज मर्दाना खाने में गूंजी। लाला जी, मैंने तो यही सुना कि राहिम साल ने ही हसाम का कत्ल किया है। अब हकीकत क्या है ये खुदा ही बेहतर जानते हैं। मियाँ दाद ने मसनूई अफसरदगी चेहरे पर तायर करते कहा। बकवास बंद करो अपने कमीने गलीज इंसान। वो एक जस्ट में अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इनके घुटनों के जख्म अब भी ताज़ा थे। तकलीफ की शिद्दत लहर अल्तमश के वजूद में दौड़ गई, पर इस चीज़ की परवाह किए बगैर गुस्से में मारे। मैं बकवास नहीं कर डाला लाला जी। मियाँ दाद भी अब कुछ हद तक सम गया था। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मेरे हिसाम को तुमने मार डाला अपनी अना पेस्ती के इंतकाम के चक्कर में। वो दिन चपटे थे। अच्छे ने बेमश्किल ने मियाँ दाद से दूर किया। मैं क्यों मारूंगा? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मियाँ दाद ने हल्काते हुए कहा। गलतफहमी? बेगैरत इंसान, तुमने मुझसे हिसाम छीन लिया अपने इंतकाम के चक्कर में। औकातदार करब ज़्यादा लहजे में कराए। हाँ, मैंने मार दिया हिसाम को क्योंकि तुम्हें शौक था इंसाफ का झंडा लहराने का। इतने तुमने मुझे बड़े मजमे के सामने इस बुड्ढे से माफ़ी मंगवाई तो मेरी तरफ से यह हकीर सा तोहफा था। मियाँ दाद में खौफ और घबराहट जुर्म तस्लीम किया। अल्तमश के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। अशर की गिरफ्त से निकलकर मियाँ दाद के चेहरे पर थप्पड़ों मुक्के घुसने बरसाने लगे। एक जुनूनी सी कैफियत आई थी इनके चेहरे पर। एसपी शोएब और अशर एक इंसान को काबू नहीं कर पा रहे थे। मियाँ दाद अपने नाक और चेहरे पर पड़े थप्पड़ों को मुक्कों से आधा मुंह हो गए, लेकिन अल्तमश के अंदर गम गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अल्तमश, छोड़ो, इसे मर जाएगा, वो कानून को हाथ में मत लो। अशर दाड़ा और शोएब कब से हलकाना हो रहे थे अल्तमश को काबू करने के, लेकिन फिर भी अल्तमश इनसे काबू नहीं हो रहा था। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। अल्तमश तेज में आकर अशर को थप्पड़ जड़ा दिया और फिर से मियाँ दाद के पास जाने लगे। बेशक मैं मार भी दूं, लेकिन मैं तुम्हें इस गलीज इंसान के गलीज खून से अपने हाथ रंगते नहीं देखना दूंगा। अशर ने तमाइश से ज्यादा ऊंची आवाज में कहा। मरोगे मेरे हाथों से अशर। अल्तमश ने अशर का गिरबान पकड़ते हुए फिर के कहा। मार दो, लेकिन जब मैं जिंदा हूँ तो मैं ये नहीं करने दूंगा। अशर ने इत्मीनान से कहा। मेरे हिसाब का कातिल मेरे रूबरू है, मैं इसे कैसे बख्श दूं? इस कमीने बेगैरत गठी इंसान की वजह से मैं गुनहगार हुआ। एक यतीम लड़की को वनी बना लिया। एक बेगुनाह इंसान जो कि बेकसूर था, वो मेरी दहशत की वजह से अपना घर बार छोड़कर फरार हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस कमीने इंसान की वजह से यह सब हुआ। मैं नहीं छोड़ सकता इसे अशर। अल्तमश चिल्ला कर कहा। मियाँ शेब, मियाँ दाद को ले जाओ। अशर ने शेब को देखकर संजीदगी से कहा, जबकि अल्तमश ने अशर को खुद से दूर करने की मुकम्मल सही की। एसपी शुएब भी नाजुक सूरत हाल को समझते हुए मियाँ दाद के नीम मुर्दा वजूद की समझ बढ़े। मियाँ दाद इस वक्त नीम मुर्दा हालत में था। एसपी शुएब ने नवाज और जमील से कहकर मियाँ दाद को उठाने का कहा। शुएब, तुम बीच में मत आओ, अल्तमश ने अशर को धक्के देकर कहा। लेकिन तब तक जमील और नवाज मियाँ दाद को घसीट कर एसपी शुएब की गाड़ी में डाल चुके थे। अल्तमश लंबे लंबे डंग बढ़ता शुएब की गाड़ी के पास पहुंच गए। तुम दोनों को भी मैं देख लूंगा। नवाज और जमील पर सख्त नागवार निगाह डालकर आगे बढ़े। सदर ये शोर कैसे? नादिया ने नाश्ता बनाए नाम ही किया था, क्योंकि सुबह सुबह इसका दिल बोझल बोझल हो गया था। आप भी वो लॉन्च बैठी खुद को परसुकून करने की कोशिश करती, जबकि इसके कानों में किसी की चीख चिल्लाने की आवाज़ें गूंजी। इसका दिल मजीद घबराया। लगता है साहब जी की आवाज़ है, थोड़ी देर पहले मुझे भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दी थी। सदर ने भी घबराई लहजे में कहा। अल्तमश का जिक्र सुनकर नादिया ठिठकी और राहदारी पूरी करती बड़ी हवेली के सरसब्ज वासी लाइन में आ गई। अल्तमश अशर की तेज आवाज़ मर्दान हानि की समझ से आ रही थी। वो भी मर्दान हानि की समझ बढ़ गई। सदर से इसे मदना करती रही। नादिया इस तरफ ना जाओ, क्योंकि अल्तमश ने सख्ती से मना किया था। हवेली में कोई भी औरत मर्दाना हानि की समझ नहीं आएगी। लेकिन वो सदर की आवाज़ सुन कब रही थी। वो तो चले पाँव की मछली की तरह तड़प रही थी। अल्तमश की दिल की तुला देने वाली कराहट इसे खौफ में मुबतला कर रही थी। वो मर्दाना हानि की समझ बढ़ गई जब इसकी निगाह अल्तमश पर स्याह रंग की गाड़ी किसी
जीरो को घसीट कर निकाल रही थी। वो दूसरी जानब अशर और शेब इन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। अल्तमश और चलाए वो जो बेरहमी सफाकी से मीदाद की दुर्गत बना रहे थे। नादी की आवाज़ सुनकर अपनी जगह पर मुतवज्जो होगी। क्या कर रहे हैं, छोड़े इसे। अल्तमश ने बाजू थामा गुराई। अशर और शेब हौनकों की तरह नादी को देख रहे थे। अशर के लिए नादी अजनबी नहीं थी, लेकिन शेब ने इशारे से अशर से कहा। सामने खड़ी इस गंदमी की रंगत वाले पुरकशिश और मासूम लड़की ने बात पूछी। तुम यहाँ क्यों आई हो यहाँ? अल्तमश ने तीखी नजरों से घूरा। आप इस आदमी को क्यों मार रहे हैं? वह भी नादिया थी। मजाल है जिस पर अल्तमश के सख्त और तेज लहजे का कोई असर हो। जहाँ से अभी और इसी वक्त। नादिया के मुलायम हाथों से अपने बाजू हलात करते बोले, मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं सच बताएंगे। और क्यों पीट रहे हैं इस आदमी को आप? वो भी तेज आवाज में चलाई। अल्तमश ने गहरा सांस खींचकर अपने साफ नॉर्मल करने चाहे। मैं तुम्हें नहीं बता रहा अभी, इसलिए जाओ। इसकी आवाज में थकन दर आई। भाभी आप इसे ले जाएं यहाँ से प्लीज। अशर जो इतनी देर खामोशी से नादिया को देख रहा था संजीदा से बोला। अल्तमश ने ऐसे खुनख्वार नजरों से घूरा, गोया जैसे वो अशर को आंखों के जरिए ही मार देने का इरादा रखते हैं। चलें अल्तमश। नादिया अल्तमश को पहचानती थी, इसलिए इसका शक अब यकीन में बदल गया था कि अल्तमश जरूर कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं चल रहा, जिद मत करो। वैसे खुद से दूर करते हुए दबे दबे गुस्से में चलाई, लेकिन तब तक अशर शेब गाड़ी की ड्राइवर सीट संभाल चुके थे और देखते देखते वो जल्द से शेब की गाड़ी को राख ले गए। अल्तमश ने खा जाने वाली नजर से नादिया को देखा, गोया जैसे सारा कसूर नादिया की था, क्यों कि अब मियां दाद को अशर लेके जा चुका था और ये सब नादिया की बहस की वजह से हुआ था। शेब तुम बेशक पुलिस अफसर हो, लेकिन मियां दाद का कत्ल मैं नहीं करूंगा। तुम या फिर अशर दूर हो जाओ इस मामले से। एक कमीनी इंसान अशर को फोन करके कहो कि आधे घंटे में दाद को लेकर मर्दाना खाने पहुंचे, वरना मैं मियां दाद से पहले अशर अफ्तियार मेरे हाथों से मारा जाएगा। नागवारी से सर्द मेरी से कहते हुए नादी की समझ बढ़े। और तुम चलो मेरे साथ। नादी का हाथ थामकर बड़ी हवेली के अंदर हिस्से की तरफ बढ़ गए। तुम क्यों आएगी वहाँ? नादिया को सोफे पर अपने सामने बैठने का वो दबे दबे गुस्से में चलाई, क्योंकि आपकी चिल्लाने की आवाजें मैंने सुनी थी। मनाई। अल्तमश हाथ से गुस्से में दिखाई देते। मैं चाहे मर भी रहूं तब भी हवेली इस हिस्से में कभी दाखिल नहीं होना। इस हवेली के कुछ असूल है नादिया, जिनके तुम्हें भी एहतराम करना होगा। न जाते हुए भी इसका लेजा साथ होगी। आप फिर से गुस्सा कर रहे हैं? नादिया ने बुरे बुरे मुंह बनाकर कहा, क्योंकि तुम ऐसे ही करती हो, लेकिन आज के बाद ये गलती फिर से नहीं दोहराना। वो समझाने वाले अंदाज में, लेकिन वो आदमी कौन था? वो नादिया थी जिसे सामने वाले के गुस्से से कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अब वो इस इंसान पर यकीन करती थी कि उसे कभी जीत नहीं देगा। हिसाम कोई कातिल था वो, जिसकी खैर ख्वाह बनकर तुम आ गई थी। नहीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए था अभी। अल्तमश ने रोहन से लजे, क्या हिसाम का कातिल? वह बेयकीनी में चिल्लाई। हाँ, हिसाम का कातिल। अल्तमश ने गहरे सांस खर्च करते हुए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकते हैं? नादिया उलझुलती, राहिम बेकसूर है, हिसाम को किसी और ने मारा है। अल्तमश ने नादिया को वापस सोफे पर उठाते कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वो दम बंद रहेगी। मेरी आंखों के सामने तो राहिम हिसाम पर गोली चलाई थी, ये इसने दिल में सोचा, लेकिन जुबान पर ये बात नहीं लाई। मुतसिर सी बात है कि हिसाम का कातिल राहिम नहीं बल्कि कोई और है। नादिया के हाथ मजबूत थाम कर गोया मगर कर्ज दफ्तर लजे में। नादिया की आंखें खुली की खुली रहेगी। तो फिर अब क्या होगा? अल्तमश वो बोली, मैं मियां दाद को मारकर जेल चले जाऊंगा। अल्तमश ने कंधे छाक बिना देखा, तुम हराम है आपका? मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। आप इस आदमी के साथ कानूनी जंग कर लड़े, लेकिन इसे खुद मत मारे। नादिया ने कड़े तेवरों से घूरा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी हर नाइंसाफी का, हर गलती का, जिसकी वजह से तुमने जीत सही। मैं अभी जाऊंगा पुलिस स्टेशन के बाद मैं दाद को खत्म कर दूंगा, फिर शायद इसके बाद मैं जेल चले जाऊँ। हो सकता है मुझे माफ कर देना। वो नादिया के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और इनके एक अल्फाज में सच्चाई झलक रही थी और हकीकी मायने में पेशमान थे। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगी, और माफी मैंने आपको कल रात ही कर दिया था, ऐसे मत बोलें। नादिया ने इनके जुड़े हाथों को खोल दिए। मैंने अपने आदमी राहिम के खोज में लगाए थे। मेरा चाहे जो भी मुस्तकबिल होता, मैं अपनी माँ के पास चली जाना, और तब तक शायद राहिम भी तुम लोगों के पास आ जाए। वो पहली बार अपनी मोहब्बत की निशानी नादिया के माथे पर सबत करते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए, वार्डरोब की दराज से पिस्टल निकालकर इसे लोड करते हुए कमरे से बाहर जाने लगे। अल्तमश मत जाएं। वो रो रही थी, ना दीवाना वार रो रही थी। अल्तमश ने महज इसकी भीगी आंखों में देखा। जब मैं राहिम को माफ नहीं कर सकता था, हिसाम की खातिर मैं राहिम को भी मारने का मुकम्मल इरादा कर चुका था, और अब तो फिर तो कोई तीसरा है इंसान है जिसे मारने के बाद लम्हे में ज़मीर मुझे मलामत नहीं करेगा। और मैंने हिसाम के नाहक खून की कसम उठाई थी कि मैं इसके कातिल को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। मैं हिसाम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो मेरे लिए है, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। नादिया के गिर्द बाजू हमाल करते हुए वो संजीदगी से गोया। नादिया पथराई हुई नजर अल्तमश को देख रही थी। अल्तमश की बातें इसके सर के ऊपर से जा रही थी। वो दहम बधी इसे सागत और जामा छोड़कर अल्तमश कमरे से बाहर निकल गई। नादिया का दिल डूबते हुए महसूस हुआ। इसके रूह तक हारी हारी होने लगी। वो ग्लास तोड़ की समझ भागी। यार शोएब, मुझे लगता है ये बंदा मर चुका है। अशर ने गाड़ी के एक समझ रोक दी
और साथ ही कालबा शेब से मुंह धोता, क्या तुम क्या यकीन से कह सकते हो? शेब ने फिक्रमंदाना लहजे में पूछा। हाँ यार, मुझे तो यही लग रहा है, अशर ने पेशमानी मसलते हुए कहा। अच्छा, तुम कहाँ हो इस वक्त? तुम जल्दी से इस ड्रेस सेंड करो, मैं वहीं पहुंचता हूँ। ड्रेस? शेब नवाज से अल्तमश की गाड़ी की चेन लेते हुए जलन में था। मैं तुम्हारे नंबर पर मैसेज करके ड्रेस सेंड करता हूँ, अशर ने कहकर कॉल काट दी और शेब भी लैंड क्रूजर में बैठकर बड़ी सी हवेली के खारजी दरवाजे की जाने बढ़ा। कहाँ हो तुम इस वक्त? अल्तमश इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था और साथ ही शेब के साथ मुसलसल राब्ते में था। मर गया है वो आदमी जिसे तुमने पीटा था, इसकी तफनीन करने जा रहे हैं, शेब ने गहरा सांस खार करते हुए कहा। मेरी दाद वैसे भी कमजोर जसामत का मर्द था और ऊपर से अल्तमश ने थप्पड़ तोड़ पड़ने वाले गुस्से और लातों से इसे आदम कर चुके थे और यही सी कसर अल्तमश ने साथी से मेरी दाद का गला घुटने ने पूरी कर दी। अशर में अभी रास्ते में थे जब से मेरी दाद की दबी दबी कड़कड़ाहट की आवाज आना बंद हो गई थी। अशर ने सिखलाई नफ्स चेकी तो वो भी हरकत नहीं कर रही थी। कुछ ही देर में मेरी दाद का मुकम्मल मुआयना करने के बाद अशर को यकीन हो गया मेरी दाद मर चुका है। शब की बात सुनकर अल्तमश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसके सबूत चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट नमदार हुई। किसान की मौत के बाद खुद का हर गुजरते हुए दिन के साथ पशमान के दलदल में डसते हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन आज इनके वजी चेहरे पर जानदार से मुस्कुराहट थी। शहद रंग आंखों में अजीब से सरशारी चमक दिखाई दे रही थी। मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें, अल्लाह हाफिज़, शेब ने मुतसिर कहकर कॉल काट दी। अब तुम अपने ऑफिसर को क्या जवाब दोगे? अशर और शेब कब्रिस्तान के बाहर आ गए थे जब अशर ने उलझन अवेज और परेशान के लहजे में शेब से इस्तफार किया। मेरी दाद का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी अच्छे नहीं है, इसलिए कह दूंगा ऑफिसर से कि पुलिस मुकाबले में मारा गया, शेब ने अशर को देखकर कहा। अशर के सपाट चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। मैं अल्तमश को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। परेशानी वाली बात यह है कि तुम लोगों का गांव मेरे पुलिस स्टेशन के हदूद में नहीं आता, लेकिन मैं कोई न कोई हल निकाल लूंगा। एसपी शेब ने गाड़ी में बैठते हुए बहुत बहुत शुक्रिया कहा। यार, आशिर ने शेब से बल्कि रो कैसा शुक्रिया, ये मेरा फर्ज था। मेरे दाद के लक्षण वैसे भी लालच से भरपूर थे, आज नहीं तो कल वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता। और अल्तमश का माजी भी मुझसे ढका छुपा नहीं है, एसपी शेब ने रुसान से कहा। अल्तमश ने जिस बेरहमी से मेरे दाद के गले पर मुसलसल लातें रसीद की थी, इसकी वजह मेरे दाद को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। और फिर जब अल्तमश ने इसके गले आखिरी जब लगाई थी, उसकी मेरी दाद बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था और आखिरकार अगले 20-25 मिनट के सांसें जो मदम चल रही थी वो भी साख्त होकर जामद हो गई। एसपी शेब का एक करीबी दोस्त माहिर डॉक्टर था और इसने मेरी दाद की मौत की यही वजूहत बताई। एसपी शेब क्योंकि पुलिस की अहमियत बफाय से इसने खामोशी के साथ इस मामले को निपटा लिया। अब बस यही दुआ की तो अपनी जिंदगी में खुशियां और मसरत पाएं। शेब की बात में अल्तमश के लिए झलकती अपनीयत खुलूस अशर से पोशीदा नहीं थे। और हाँ, वो लड़की कौन थी जो अल्तमश को बार बार रोक रही थी? शेब ने अचानक कहा। वही लड़की अल्तमश की ज़ौजा मोहतरमा है, इस रिश्ते से हम दोनों की ही मुश्तरका भाभी साहिबा हुई, अशर ने शौकी से कहा। कब की अल्तमश ने शादी? इसने मुझे दावत भी नहीं दी शादी की, और लड़की भी तो इतनी कम उम्र लग रही है। मैं सोच रहा हूँ शादी की दावत ना देने की सजा में अल्तमश को जेल की सजा करवा ही दूँ। शबाब ने मुस्कुराते कहा और शेब की बात सुनकर अशर खुलकर मुस्कुराया। किस जुर्म की बुनियाद पर ऐसा जेल की सैर करवाओगे? वैसे भी इस जालिम ने इससे इतनी जोर से थप्पड़ रसीद किया है, अभी तक आंखों के सामने तोते उड़ रहे हैं, अशर ने मसनी आस सरवरते हुए कहा, जैसे वाकई में वक्त गहरी जंज का शिकार हो। वो लड़की इतनी मासूम कम उम्र लग रही थी, मुझे इस बात को बुनियाद बनाकर जेल में डाल दूंगा और क्या? एसपी शेब ने कंधे चाकर। हाँ हाँ, अब वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अशर ने फलक शफाफ कह शेब की समाते में बुरा। और तुझे याद नहीं जब बचपन में भी कभी किसी बात पर गुस्सा आता तो खड़े खड़े ही हमारे गाल लाल टमाटर कर देता था? अशर ने फ्रंट सीट के बैग से सर निकाल कर शेब को खबरदार करना चाहा। तब तो हम दोनों ही इसके सामने सूखी लकड़ी के मान थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के महकमे में एक आला आयदे फफाइज है। शेब ने शरारती अंदाज में गर्दन अकड़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो देख लेते हैं कौन किस पर बाई भरते हैं, तुम या अल्तमश? अशर ने कंधा चाकर। वैसे तो तुम कब कर रहे शादी? तो कम से कम मुझे इन्वाइट कर देना, शेब ने अशर को छेड़ा। और शेब की बात सुनते ही अशर की आंखों के सामने नगीना का मनमोहा हसीन चेहरा लहराया, जिस पर अशर ने सर झटक आंखें मूंद ली। बेबी जाए, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ है? सदफ हामते हो नादी के पास आई, जो सीढ़ियों पर बैठी है चीज रो रही। सदफ वो चले गए, इसने सिसकते हुए कहा। कौन चले गए? सदफ ने समझी से आने वाली गाँव से नादी को देखा। नादी के चेहरा रोने की वजह से सूज चुका था, इसकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से सर हो चुकी थी। इसके रेशमी बाल दराज बाल पश पे बिखरे हुए थे। दुपट्टा भी लापरवाही से इधर नादी के शाने पर सीने पर पड़ा था, लेकिन वो अपने होली की परवाह किए बगैर मुसलसल रोई जा रही थी। सदफ इसके लिए पानी लेने किचन की तरफ भागी।
लेकिन लॉन्च में दाखिल होता अल्तमश बहुत बुरी तरह से टकराई। पानी का भरा जग अल्तमश की पैरों कपड़ों में खराब कर चुका था। अल्तमश ने तीखी निगाहों से सदफ को साहब जी माफ़ी चाहती। दरअसल बीबी जी भी रो रही थी तो इनकी परेशानी में ध्यान नहीं रहा। वो बेचारी एक ही सांस में बात मुकम्मल करेगी। सर झटकाया। कहाँ है तुम्हारी बीबी जी? अल्तमश ने बीबी जी पर जोर दिया। वो जी सीढ़ियों पर बैठी हुई है। सदफ हनलाई। अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, मैं देख लेता हूँ तुम्हारी बीबी जी को। इनकी बारीक गबरी आवाज़ लाउंज में गुंजी और सदफ तो ऐसे गायब हुई जैसे वो अल्तमश के सामने खड़ी ही न हो। पर वक़ात चलते वो सीढ़ियों की समझ बढ़े। नादिया घुटने में सर दे हचके से रो रही थी। अल्तमश की आंखों में मोहब्बत और चाहत के रंग नमदार हुए और साथ साथ इन्हें इस जल्दी लड़की पर खोट खपियार आया रहा था जो रो रो के खुद को लकान करने में वर्जित थी। इन्होंने नादिया के चेहरे पर करना चाहा पर नादिया पत्थर ने इन्हें धक्का देकर खड़ी होगी और नादिया के इस रद्दमन को देखकर अल्तमश से डर के मेरे पास मत आइएगा। समझ क्या रखे आपने मुझे? जब दिल चाहा थप्पड़ जड़वा दिया, जब दिल चाहा करीब कर लिया, जब दिल चाहा मुझे छोड़कर मेरी परवाह किए बगैर अपने इंतकाम लेने चल दिए, लेकिन अभी वापस क्यों आ गए हैं? मेरा आपने सोचा तक नहीं और सोचते भी क्यों? मैं तो खून बहा में आई हुई लड़की थी ना। अल्तमश सीने पर बादल लपटे थी कि नजरों से घूर रहे थे जो इस वक्त पत्थरी हुई थी। आपने मेरे साथ नहीं किया। अगर आप वापस नहीं आते तो मेरा तो क्या होता? अल्तमश के इशारे में मुक्के मारते हुए चिल्लाई। पता है इल्तमास एहसास का तर्जमा नहीं हुआ करता। जो इंसान जिस पर उतरा है इसके सामने अपना दिल निकाल कर भी रख दे, इसके बेहिसी में फर्क नहीं पड़ता। आपने अजली से बेहिसी के मुजाहरे किए और मुझे बीच राह छोड़कर चलते बने और तेजी से सीढ़ियां फलांगती अल्तमश के कमरे में घुस की थी। अल्तमश ने घसाकर बालों में हाथ फेरा और खुद भी अपने कमरे की समझ बढ़ गई क्योंकि इन्हें अपनी रोटी की मोहब्बत को मनाना था। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं? अम्मा भी ने अपने भाई फैसल के नंबर पर कॉल डायल करी और शास्त्री से कोई अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं अम्मा? फैसला की बारी आवाज़ अम्मा बी के कानों में गूंजी। मैं भी ठीक हूँ लेकिन मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अम्मा बी ने तनवी बाने जी मैं सुन रहा हूँ, आप हुक्म करें। फैसल साहब ने संजीदगी से कहा। अशर के लिए मुझे नगीना का हाथ चाहिए। तुम्हें रास्ते को अगर बेहतर लगे तो हम बात आगे बढ़ाएं, अम्मा बी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा। कुछ लम्हा में फैसल साहब की आवाज़ अम्मा बी तक नहीं पहुंची। शायद वो भी शौक थे, लेकिन इसके बाद घबरू आवाज़ अम्मा बी के कानों में उभरी। अम्मा बी हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है? अशर घर का बच्चे हैं, लेकिन मैं एक बार नगीना से इसकी राय लेना चाहता हूँ, इसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंच सकूंगा। फैसल सामने शांत से कहा। ठीक है, तुम मुझे पूछ लो नगीना से, वरना तुम रहने ही दो। मैं जानती हूँ अपनी शहजादी को कैसे राजी करना है। कल शाम तक मैं खुद ही गिलगित पहुंच जाऊंगी, फिर खुद बात करूंगी नगीना से। मामा बी ने कहकर राब्ता मुंतकी कर दिया। मेरी बात तो सुनो तुम, अल्तमश ने नादिया के शाने पर गिरफ्त साथ कर कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो चिंकारी। तुम चाहती हो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं या फिर अच्छे से सबक सिखाऊं? वो मानी हैज और शरारत से बोले। नादिया तो इनके अचानक बदलते रवैयों को देखकर जलबुन कर रह थी। कहाँ वो थोड़ी देर पहले अल्तमश को लेकर खौफजदा ख्वास आती थी, ऐसे लग रहा था कि अल्तमश कभी इसके बाद वापस लौट के नहीं आएगा। इस सोच के बाद तो नादिया की सांसें उखड़ रही थी। इसका दिल खतरनाक हद तक तेज धड़क रहा था, लेकिन यहाँ तो अल्तमश के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। मुझे कोई सबक नहीं सीखना, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। वो खुद को अल्तमश की पहुंच से दूर करते चिल्लाहट ज़्यादा जमोली। खबरदार, आज के बाद मुझे ऐसी कोई गंदगी दी, जान ले लूंगा तुम्हारी। अल्तमश ने नगवारी और सख्ती से कहा। ऐसे ही गुस्सा करते हैं और फिर बाद में माजरत करते हैं, वो मुंह बगाड़ कर बोली। तो तुम मुझे मजबूर ही मत किया करो ना, और कभी कभी तो हम से किसी की बात सुन लिया करो। मैं गया था इस आदमी को मारने जिसने हिसाब को मारा था, लेकिन पहले ही मर गया था, तो इसमें मेरा क्या कसूर? ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी की मौत का नहीं बल्कि किसी की जानवर की मौत का जिक्र कर रहे हैं। नादिया ने आंखें फैलाई। कैसे मर गया? नादिया ने बिजली से पूछा। जैसे इंसान मरते हैं वैसे ही मरा होगा यार। वैसे आपस की बातें कहाँ से आते हैं ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में? अल्तमश ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर नादिया के भीगे हुए गाल साफ करते चाहे। नादिया ने इसका हाथ झटक दिया। आइंदा ये हमाकत करने का सोचने में मत, वरना मेरा शदीद रद्दमल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नादिया को कड़े तेवरों से घूरते हुए दबे दबे गुस्से मानी हेज दर्जे में बोले। वो सेम कर खामोशी से सर झुकाकर खड़ी होगी। मुंह ठीक कर लो आप अपना और तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में मेरे कुछ खास मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, इनके सामने तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखूं। इनका चेहरा चूशू इसका चेहरा दूसरे साफ करते हुए बाद अल्तमश ने नादिया के दोनों हाथ थाम दे कहा। ठीक है। नादिया ने सर साहब ने और शिकवा गुनाह निगाह से अल्तमश को गुना जैसे वो भी अल्तमश से सख्त नाराज। अच्छा बाबा, एक बार फिर से सॉरी। इसकी छोटी सी नाक दबाकर शरारती अंदाज में बोले। आप मेरी नाक मत खींचे करें। वो बुरे बुरे मुँह मनाते बोली। तो मैं तो हमारे बच्चों के सामने भी इनकी अम्मा की नाक खींचता रहूंगा, क्या करोगी फिर? अल्तमश के मानी है तो बेबाक जुमले पर नादिया के पलकें साया फलकन होगी। पागल लड़की, वो बढ़ाए और नादिया की एक बार फिर से नाक दबाकर फ्रेश होने चले गए। शाम को अल्तमश नादिया का हाथ थाम कर डाइनिंग रूम में दाखिल हुए, लेकिन डाइनिंग रूम में कोई और भी मौजूद था जिसकी पश नादिया की समझ थी।
और छोटे छोटे कदम उठाती ईशा सीधे सामने खड़ी गई जो पहले से लाजमी मौजूद था। जब नादिया के सामने खड़ी हस्ती को देखा तो अल्तमश के हाथ नादिया की गिरफ्त सख्त हो गई। इसने अल्तमश को सवाली निगाह से देखा जैसे पूछना चाह रहे हो कि ये क्या हकीकत है या कोई ख्वाब। नादिया अपने भाई से मिल लो। अल्तमश ने इसका हाथ थपथपाकर नरमी से कहा और नादिया का हाथ छोड़ दिया। भाई, इसकी आवाज़ सरगोशी से भी कम थी। राहिम अपनी मेन की समझ लपका और नादिया को अपने सीने से लगाया। नादिया के दबदबे से इसके नाच में बनने लगी। आंखें तो राहिम की भी नीम थी, लेकिन नीमी से ज्यादा राहिम की आंखों में पेशमानी शर्मिंदगी का नासुर नुमाया था। और दोनों बहन भाई रो रहे थे। एक ही हिचकी बंद हो चुकी थी, दूसरी की आंखें और जिब्बे भिजे हुए थे। मुझे माफ कर दो किशमिश, राहिम ने नादिया के सामने हाथ जोड़ते गुलगोज और शर्मिंदा लहजे में कहा। नहीं भाई, तुम ऐसे मत कहो, जो होना था वो हो गया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि सही सलामत मेरे सामने मौजूद हो। नादिया के लहजे में खुशी की नमक मौजूद थी। अल्तमश शटक खामोशी से दोनों बहन भाई को देख रहे थे, जबकि राहिम के नादिया को कशमश में हाथों कर अल्तमश पर बरकर दिलकशी से मुस्कुरा दिए। भाई, नादिया से राहिम की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए तड़प उठी। नादिया, मुझे लगता है जब इंसान अपनी वक़्त खो दे तो इसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है। वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, नदामत कभी नेमत बदल नहीं हो सकती, कभी अल्फाज भी इंसान को खोया हुआ मकाम नहीं लौटा सकते। हाँ, खामोश, मजीद खामोश, तजलील से बचला लेती है। और मैं जानता हूँ मेरी गलती की माफ़ी नहीं। मुझे तुम्हें और अम्मा को इस तरह तनहा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, राहिल ने नदामत ज़दा लहजे में कहा। भाई, मैंने तुम्हें अपनी कसम दी थी, अगर तुम चले गए थे तो इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं था। और राहिम ने शाने से लगती बहुत से मुस्कुराई और राहिम ने के सर पर शफकत से बोस दिया। राहिम ने नादी के सर पर शफकत से हाथ रखा और तमाशा हटकर समझ बढ़ा। राहिम से तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें इस तरह से अपने घर की औरतों तनहा छोड़कर दरवाज़ों से फरचौर दरवाज़ों से फरार नहीं होना चाहिए था। और रसानों से बोले। इनके शुभ चेहरे पर नरमी का नासर मौजूद था। मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ लाला जी, राहिल ने नदामत ज़दा अंदाज में कहा। तुम अभी शर्मिंदा मत हो, और जो होना था वो हो गया, शायद मैं भी गुनहगार हूँ, अल्तमश ने राहिल को खुद से लगाते हुए कहा। नादी की आंखें तश्गर महज अंदाज में नहीं थी। कुछ देर और राहिम अल्तमश नादी के साथ खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करने के बाद अपने घर रवाना हो गया। आप बहुत अच्छे हो अल्तमश, राहिम के जाने के बाद नादी अल्तमश के पास आकर बैठी और मोहब्बत पाश निगाहों से अल्तमश को देखने लगी। वो जानती थी कि अल्तमश आज बेहद बिखरे हुए हैं, क्योंकि गस्साम की मौत का आगाम एक बार फिर से ताज़ा हुआ है। मैं अच्छा नहीं हूँ, नादी के सामने बैठते ही बोले। आप बहुत प्यारे हैं, आप खुद भी नहीं जानते। नादी ने हफ्के से नाक चढ़ाकर कहा। इस तरह की नाक चढ़ाने पर गनी मुझे तले मौजूद अनाबी लब से मुस्कुराए। तुम जिद क्यों करती हो हर बात पर? मसनू हैरानगी चेहरे पर ताहिर करते अल्तमश ने पूछा। क्योंकि आप मेरी बातें तहम्मुल से सुनते ही नहीं। वो पश्च पर बिखरी रेशमी बालों को समेटते हुए बोली। इस वक्त अल्तमश के दिल की तार अपनी तमाम तर खूबसूरती मौसम से छेड़ रही थी। खुला रह देने ने अल्तमश का इशारा नादी के बालों की समझ था। नादी ने शर्मिंदगी अंदाज में वहां से उठना चाहा। अल्तमश की गिन आंखों में मानी खैज और शरारत बांध चुकी थी। बैठो, इसे अपने करीब बैठाकर बोले। मुझे सदफ के साथ दोपहर का खाना बनाना है। वो बनाई। सदफ खुद बना लेगी, मेरा मूड खराब मत करो। इन्होंने नादिया को आंखें दिखा। अल्तमश हमें अभी भी लॉन्च में है, नादी ने आस्ते से कामती आवाज में कहा। अल्तमश ने इधर उधर निगाह दौड़ाई और अगले ही लम्हे नादिया से दूर होकर बैठ गई। कुछ ही देर में इनके सेलफोन पर जमील की कॉल मसूल हुई। मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, लेकिन शाम को अच्छे से क्लास लूंगा तुम्हारी। और सर आह भरते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नादी का धमकाना इन्हें लाजमी समझा। नादी हल्का सा मुस्कुरा कर सर झुकागी और अल्तमश मर्दाना खाने की समझ बढ़ गए। राहिम घर पहुंचा तो नादी में पहले इससे जी भर के अपने दिल की भड़ास निकाली। इसके बाद राहिम की शानों से लगी उससे सिक रही थी। अम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं शर्मिंदा हूँ। राहिम की बारी आवाज से ज्यादा कमरे में गूंजी। अब क्या फायदा तेरे शर्मसार होने का, मेरे बच्ची तेरी जिंदगी खातर खुद जुल्म की बैंड चढ़ गई। नादी बेगम के लहजे में कर्व के झलक रही थी। अम्मा, मैं जानता हूँ कि पहले शायद लाला जी के रवैये के साथ साथ हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कश्मीर से मुलाकात करके आ रहा हूँ, बहुत खुश दिखाई दे रही है। इसकी आंखों में हकीकी खुशियों की चमक जमला रही है। राहिम ने नादिया बेगम की आंखों में देखते हुए मजबूत अंदाज में कहा। तुम सच कह रहे हो राहिम, तुम क्या तुम वाकई नादिया से मिल के आई हो? लाला जी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? नाहिदा बेगम के लहजे में खौफ था, बेताबी थी। अम्मा, मुझे लाला जी के आदमी ही बड़ी हवेली लेके गए थे। मैं कल ही पुलिस को गिरफ्तारी दे चुका था, लेकिन इसके बाद पता चला जाने से क्या हुआ, लाला जी के आदमी मुझे जेल से रिहा करवा कर बड़ी हवेली ले गए। राहिम ने सारी कहानी नाहिदा बेगम से गुजारिश कर दी। इसके बाद नाहिदा बेगम के चेहरे पर खुशियों के दीप रोशन हो गए। वो खुश थी, बेपनाह खुश। राहिम को एक बार फिर खुद से दिखाते वो अपने रब के शुक्रगुजार थी। आज भी इन्हें पंचायत का ही फैसला सुनाना था, क्योंकि सुबह से उस कदर हौस पात और गिन चक्कर बने हुए थे कि इन्हें याद ही नहीं रहा। लेकिन अभी वो शाहाना
انداز میں مردانہ خانے میں داخل ہوئے اور پروکار چل چلتے علیشان تخت پر جا بیٹھے۔ مردہ خانے میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے سب کے سلام کا جواب دیا۔ پنچایت کی کارروائی شروع ہوئی۔ ساتھ کھڑے 25 سالہ گندی رنگت والے نوجوان لڑکا سرخ آنکھیں اور شعلہ بار چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ التمش ہٹم کو سب سے پہلے اسی طرف موقف پیش کرنے کا حلالہ جی، سہیل نے میرے جوان بھائی کا بغیر کسی قصور کے قتل کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکا غصے سے لبریز درجے میں بولا، سہیل خود کہاں ہے اس وقت؟ التمش کردار آواز مردانہ خانے میں گھبری، لالا جی میرا نام میر محمد ہے، میں سہیل کا والد ہوں، وہ بدبخت اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کے منہ کالا کر کے ملنے کے بعد فرار ہو چکے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے سہیل خان، لیکن پتہ نہیں اس نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا۔ التمش کے سامنے کھڑے ادھر عمر آدمی رنجیدہ لہجے میں بولا، تم کیا چاہتے ہو تنویر خان؟ التمش نے ہٹ کے پوچھا، جو کچھ دیر پہلے اپنے بھائی کے ناحق قتل پر شعلہ بار تھا، مجھے سہیل کی بہن کے خون بہا میں اپنی ونی بنانا ہے۔ تنویر ہار کی سفید اور سخت آواز مردانہ خانے میں ابھری۔ التمش استری انداز میں ہولے سے مسکرائے، کیونکہ تنویر خان کے اندر اس وقت وہ خود کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ عرصے پہلے التمش ہٹک نے بھی تو یہی فرمائش کی تھی کہ اسے اپنی بہن کے مدعے ریام سیال کی بہن بنی چاہیے۔ تلخ اور زخمی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پہ اوجھل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، کیونکہ مجھے کوئی حق نہیں کسی کی بہن بیٹی کی زندگی اپنی فیصلے مسلط کرنے کا۔ اور جہاں تک بات رہی سہیل خان کے انتقام لینے کی، تو تم سہیل کے ساتھ مقابلہ کرو، اس کی بہن کو بیچ میں مت لاؤ۔ ان کی باریک گبرو آواز سن کر سب اپنی جگہ منتظر ہو گئے، ساکھ و جامہ جیسے سب کو حیرانگی کا شدید اجکل ہو لگا ہو۔ التمش کے منہ سے الفاظ سن کے، لیکن اب ہمارے قبیلے کے سرپنچ ہیں، آپ کو ہر حال میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان کے برابر بیٹھے سلیم خٹک نے سب سے پہلے بولے، میں کہہ چکا ہوں کہ میں کسی کی بہن بیٹی پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا۔ الطرف نے چنکارتی ہوئے سلمان کو ہٹک کو گھورا، لیکن میں ممکن نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں اس مسئلے پر اپنا حتمی فیصلہ سنانا ہوگا۔ ایک اور آدمی التمش کے مخالفت میں بول پڑا، ٹھیک ہے، پھر اگر میں ممکن نہیں تو میں آج سے سرپنچ کے عہدے سے مستعفی ہو جاتا ہوں، مجھے بھی مزید کسی گناہ کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اس گاؤں کا جو بھی کوئی بھی نیا سرپنچ بنے گا، اسے میری کچھ باتیں شرائط تسلیم کرنی ہوگی، خاص طور کے خون بہا اور ونی جیسی کنڈاٹ رسم رواج کو مسترد کرنا ہوگا۔ اس رسم رواج جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ اب آپ لوگ جس چاہیں اس گاؤں کا نیا سرپنچ منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مردانہ خانے میں موجود سب لوگوں کو جیسے سانپ سونکھ گیا، سب نے بے یقین سے التمش کو دیکھا، پر وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے جانے لگے جب سلمان ہٹک ان کے پاس ہے۔ لالا جی، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہماری سر آنکھوں پر، لیکن یوں اپنا عہدے سے مستعفی ہونے کی بات مت کرنا۔ سلمان ہٹک نے ملتجی لہجے میں کہا، مجھے کوئی سرکار نہیں ہے اب، میں تو پہلے ہی ضمیر کی ملامت کو سہتے ہوئے پل پل شدید اذیت کا شکار ہوں۔ وہ نگاری سے بولے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا آج کے بعد، لیکن اس طرح سے مت کریں۔ ایک اور معزز شخص ان کے پاس آ کر نرمی سے بولے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آج کے بعد کسی نے میرے کسی فیصلے سوال نشان اٹھائے، میں اسی وقت اس سرپنچ کے عہدے کو ٹھوکر مار کر مستعفی ہو جاؤں گا۔ کندھے اٹھا کر بے نیازی سے کہتے واپس تخت پر جا کر بیٹھے۔ تنویر خان نے اپنے بھائی کے ناحق خون کی سزا سہیل خان کو قانونی جنگ لڑ کر بھی دے سکتے ہو۔ ہمارے گاؤں کی پولیس تمہارے ساتھ تعاون کرے گی اور میں بھی ہر قدم پر تمہاری مدد کروں گا۔ تمہارے بھائی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تنویر خان ویسے کو کافی بڑکا ہوا تھا، لیکن التمش کا سخت اسوار چہرہ دیکھ کر سواب میں سر ہلا گئے، کیونکہ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ پھر سے ونی اور خون بہا جیسے موضوع کا ذکر کرے۔ شام کے وقت لون میں آ گئی تھی، سردی کی آمد تھی، اوپر سے گاؤں میں تو گرمی ہو چاہے سردی ہو، دونوں ہی زیادہ مقدار میں ہوتی تھی۔ وہ اچھے سے گرم چادر اپنے گرد لپٹے حویلی کے پاس سے موجود جھیل کے کنارے آ گئی۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ وہ پاؤں کو چپل سے آزاد کرتی نرم گھاس پر چل قدم کرنے لگی۔ اور کچھ ہی دیر بعد اسے التمش اپنے سمت آتے دکھائی دی۔ وہ گرے کلر کی شلوار قمیض مبلوز کندھوں پر سیاہ چادر پھیلائے کسی ریاست کے شہزادے اور وجی شہزادے لگ رہے تھے۔ آج ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو نادیہ اتنے عرصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ شاید یہ سکون حسام کے قاتل کو موت کی گھاٹ اٹھار دینے کی وجہ سے تھا، لیکن نادیہ تو مسکراتی نظروں سے اسے یک دک دیکھے جا رہی تھی، بغیر پل کے چپکائے۔ یہ کیا ہے؟ التمش نے آتے ساتھ ہی اس کے سامنے ایک نیو بلو رنگ کا ڈائری لڑائی، جسے نادیہ نے تھام لیا اور ساتھ ہی سوالی نگاہ سے التمش کو دیکھنے لگی۔ اس ڈائری کو کھولو، التمش نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے کہا۔ اس کی محبت پاش نظریں نادیہ کے قدمی منموہی چہرے پر مرکوز تھی۔ نادیہ نے ڈائری کھولی۔ اس ڈائری پہلے ورق پر سرخ رنگ سے حسام خٹک لکھا ہوا تھا۔ نادیہ نے نہ سمجھی آنے والی نظروں سے التمش کو دیکھا۔ کیا حسام کو تم نے کبھی دیکھا تھا؟ وہ نادیہ کے ہاتھ سے ڈائری واپس لے کر سنجیدگی سے اس پار کرنے لگے۔ نادیہ گڑبڑا گئی، اب کیا بولتی؟ حسام کے ذکر پر اس کے چہرے کی ہوائیں اڑنے لگی، لیکن اس نے آنکھیں میچتے اس بات میں سر لایا، مجھے بتانا ہے کیوں نہیں پھر؟
वो गोश्ती निगाह से नादिया को देखने लगी। मैं भूल गई थी। नादिया ने अपना एतमाद बहाल करना चाहा। तुम्हें मालूम है तो वही लड़की हो जिसे हिसाम मेरे लिए पसंद किया था। अल्तमाश की बात सुनकर इसकी आंखें फैल गई। ऐसे क्यों आंखें फैला रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, इन्होंने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम वाजिह लिखा है। मेरा नाम के साथ अल्तमश ने नरमी से नादिया माथे से अपना माथा चिपकाया। इनका लहजा थकानज़दा था। नादिया ने इनकी शहद रंग आंखों में हल्की सी नीवी देखी। पता है आज के बाद तुमसे मेरी मोहब्बत में कहीं गुना ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि तुम मेरे हिसाम अपनी भाभी के रूप में पसंद आई थी। इनके वजूद से उठती महल की खुशबू पूरे लॉन में फैली हुई थी। नादिया आंखें मूंझे सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि ये वक्त ही थम जाए, सारे चरिंद परिंद अपनी जगह मंजद हो जाएं, झील के साफ और शफाफ पानी की शरारती लहरें साख्त और जामद हो जाएं, और इस खूबसूरत लम्हे के सहन में खोकर दोनों एक ही खो जाएं। ऐसी जगह जहाँ कोई न दुख न हो कोई किस्म की अजियत। अशर ने नगीने के इस रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। फिर परसों तुम दोनों की शादी से निकाह किया जाएगा। अशर जो अपनी गैराज में गाड़ी का पार करने के बाद हवेली अंदर हिस्से में दाखिल हुआ था, मम्मी की दो टोक और सख्त आवाज़ सुनकर दम खुद रह गया। इसकी आंखों में बेयकीनी थी और चेहरे पर वाज़ी हैरानगी का नासा नमाया था। अम्मा भी आपके होश में तो है? नगीना बोला कि इस रिश्ते में खामी कैसे बढ़ सकती है? वो गहरे सदमे में बोला। शायद इसलिए अपनी नागवारी और चिल्लाहट मम्मी के सामने छिपाने में कामयाब रहा। नगीना ने खुद फैसला कहा है कि इसे कोई इतराज़ नहीं और तुम्हारी तरह नाफरमान औलाद नहीं। इसने अपने वालिद के फैसले पर सरहम किया है, तो बेहतर होगा तुम भी इस किसी भी अगर मगर पढ़ने के बजाय परसों में होने वाले निकाह के मुतालिक सोचो। अम्मा भी इसे स्वागत जामत होता देख व्हील चेयर निकलती अपने कमरे की समझ बढ़ गई। अशर ने गुस्से में आकर चेन और अपनी कीमती सेलफोन जमीन पर चटक दिया। तुम्हें देख लूंगा नगीना खटक साहिबा, आखिर क्या सोच कर तुमने इस रिश्ते पर हामी भरी? और सरगोशी में बोला, जबकि इसकी आंखें इस नागवार लहजे और आवाज़ के साथ हरगिज़ नहीं दे रही थी। मुझे कल अमान से मिलने जाना है, बहुत याद आती है इनकी। जहाजी साइज नादिया जहाजी साइज बैठ के समझ बैठी और अपनी जगह पर आकर नींद दराज होते बोली। अल्तमश लम्हे भर पहले फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आए थे। अब ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी कीमती परफ्यूम में से एक परफ्यूम उठाकर खुद तस्फर करने लगे। जब नादी की मरजाई आवाज़ इनकी समात में टकराई। ठीक है, कल सुबह तुम्हारी अम्मा से मिलने चलेंगे। दराज से सिगरेट और लाइटर उठाकर वह बेड पर आकर बैठे। खूबसूरती से तराशी की मूंछों तले सिगरेट रखकर वो लाइटर सरकाने लगे। नादिया ने अबरू उछाकर इन्हें गोरा और साथ ही सिगरेट अल्तमश को से निकाल दिया। मैंने क्या कहा था? लड़का ओकन की तरह कमर कस कर मैदान में उतरी। मेरी आदत है, अल्तमश ने इत्मीनान से कहा। मेरी बात नहीं मानेगी आप? और तरीके से नादिया उल्टा अल्तमश ने इससे कोना। प्लीज़ ना, मेरी हाथ इस आदत को तर्क कर दें। वो अपनी जगह से उठकर बैठी मुल्तजी हुए जमे वाली। कर दिया तर्क, अल्तमश ने कहकर सिगरेट और लाइटर को डस्टबिन में फेंक दिया और वापस आकर अपनी जगह पर नाराज हो गई। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे जली पर दोष लहजे में चिहचहाई। मैं बहुत बुरा भी हूँ। अल्तमश ने सलमानी हेजी से देखते हुए दिलकश मुस्कुराहट डपन पर सजाई, जबकि अब नादिया खुद में सपने में मजबूर हो गई थी। वो दोनों ही नादिया के घर पहुंच चुके थे। नाहिदा बेगम जो नाश्ता बनाने लगी थी बर्तन धो रही थी। हाजी दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आई, लेकिन तब तक राहिम दरवाजा खोल चुका था। घर में दाखिल होने वाली शख्सियत को देख नाहिदा की आंखों में बेयकीनी खुल गई और साथ ही खुशी के मिले जुले तासरात भी इनकी आंखों में नमदार हुए। नादी के साथ अल्तमश घर में दाखिल होता देख नाहिदा बेगम अपनी जगह पर जम सीखी। नाहिदा के इनके करीब गई और नादिया बेगम के गले लग गई। अम्मा कैसी है तू? उन्हें अपने साथ लेकर अल्तमश के जाना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। अल्तमश शाती से नादिया बेगम को सलाम किया तो वो ठटकी। वालेकुम सलाम। इनका पुरनीम लहजा अल्तमश से तक पहुंचा। इसके बाद अल्तमश नादिया बेगम के साथ खुद भी बातें कर रहे थे। नादिया बेगम को एकदम अल्तमश के साथ पहली बार का याद आई। इस दिन की चिंगारती और बेरहम अल्तमश में आज की अल्तमश हटे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। ना ही लेकिन नादिया बेगम अब परसकून हो चुकी थी। इन्हें अल्तमश हटक नादिया के बेहतरीन हम सफ़र लग रहे थे। तभी ही नूरी भी घर में दाखिल हुई। इसे मालूम नहीं था कि नादिया भी आई हुई है। वह महज नादिया बेगम से मिलने के लिए आई थी। इसके बाद अपने शौहर के साथ ससुराल वापस जाना था। नादिया ने नूरी को देखा, जोर से चीख कर नूरी की समझ दौड़ी। अल्तमश पहली बार नादिया का ये अंदाज देख रहा था। नादिया ज़्यादा दिलचस्प लग रही थी। कैसी है? नूरी ने नीम आंखों से नादिया की गले मिलते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? नादिया ने मुस्कुराती हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, नूरी बोली। चल तुम्हारी अपनी मियाँ से मुलाकात कराती हूँ। नूरी का हाथ थामते अल्तमश के सामने खड़ी हुई। अल्तमश सफ़ेद बेदाग शलवार कमीज में मबलूस वजी चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाई अपनी जगह से उठ खड़ी हुआ। अस्सलाम वालेकुम। धीमे लहजे में इन्होंने सलाम किया। वालेकुम सलाम। नूरी ने जवाबी कार्रवाई की। मैं तुझे कहा था ना, मेरे मियाँ वो होगा जो इंसाफ पसंद गरीब लोगों के लिए अपने दिल में नरम गोश रखता हो। जब वो बात करे तो जालिम से जालिम इंसान भी इनकी दहशत से काम जाए। तुझे मालूम है नूरी, अल्तमश के अंदर ये सारे हुए मौजूद हैं। नादिया ने साहिबा ने शान बेनियाजी सफाही अंदाज में बोल रही थी, जबकि नूरी
खुल कर मुस्कुराई थी और जल्दी की बातें सुनकर राहिम को भी कुछ अरसे पहले वाला वाक़या याद आ गया, जब इसने और उसके सामने नादी की बारात सारी बात सुनी थी, बड़कियां सुनी थी। अल्तमश मोहब्बत पाशना से नादी को देख रहे थे, जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट इनके बराबर में खड़ी थी। आज अशर ने गीना का निकाह था। अशर ने मुसलसल 2 दिन इन्हें कॉल्स करके चिल्ला दिया था और आज वो अपने आबाई गांव पहुंच चुके थे। नादी के लिए ये सब कुछ दिल अवेज था। वहां मौजूद कुछ खवातीनें नादिया को देखकर नाक मुंह चढ़ाकर आगे बढ़ गई, जिसके बाद नादी ने सेमी निगाह से अल्तमश को देखा, जो अशर की किसी बात पर हंस रहे थे। तभी अम्मा बीबी अपनी व्हील चेयर धकेलती हुई इनके पास आई। अल्तमश महसूस अंदाज में इनके सामने सर झुकाकर खड़े हो गई। अम्मा बी ने इनके सर पर हाथ फेरा। नादिया ने खौफजदा निगाहों से अम्मा बी को देखा, क्योंकि इससे अभी तक अम्मा बी की चिपकारती ले याद था। इधर आओ बेटा, अम्मा बी ने नरमी से अपने पास आने का कहा। नादिया ने बेसाख्ता अल्तमश की समझ देखा। अल्तमश ने आंखों में इशारे से अम्मा बी के सामने जाने का कहा तो छोटे छोटे कदम उठाती इनके पास जाकर सर झुकाकर खड़ी हो गई, बिल्कुल सीधा जिस तरह थोड़ी देर पहले अल्तमश अम्मा बी के सामने झुके थे। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। उसके माथे पर बोझ देकर ग्लूकोज लहजे में बोली तो नादिया ने भी सुख का सांस भरा। ऐसे क्यों गुर रहे हो? अम्मा भी नादिया को अपने साथ लिए हवेली के अंदर ने हिस्से की समझ बढ़ गई, जब अशर ने होनहार खा जाने वाली नजरों से अल्तमश को घूरा। तुम कितने कमीने हो अल्तमश खटक साहिब, तुम्हें तो शादी के 3-4 साल बाद आना चाहिए था। कौन अपने दोस्त की शादी वाले दिन शादी में शिरकत करने के लिए आता है? अशर नगवारी से कराए। अब अशर और अल्तमश खटक मर्दान हानि की समझ बढ़ गई थी, क्योंकि मर्द हजरात के खसूसी इंतजाम मर्दाना हानि में किए गए थे। शुक्र शर्म मगर तुम्हें आती नहीं है अशर मियाँ। मुझे क्या नाम मना था कि तुम शादी में इतनी जल्दबाजी दिखाओगे। मुझे इत्तला ही कल रात को दी गई थी कि तुम अचानक होने वाले निकाह की। अल्तमश को देखकर जो खानदान के मुअज़्ज़ज़ मर्द हजरात मौजूद थे, वो इनके पास आके खासी गर्मजोशी से अल्तमश हटक से बलगीर हुए। अल्तमश हटक भी मोहम से मुस्कुराए, ना भी होटल में सजाए, सबके साथ शास्तगी बलगीर से होते रहे। अम्मा भी नादी को लेकर नगीने कमरे में आगे नगीना गोल्डन कलर के खूबसूरत नफीस सिलेंगे में मुबलूस थी। मेकअप के नाम पर इसने मुझसे लिपस्टिक और आंखों में लाइनर्स लगाए थे, लेकिन इस कदर सादगी में ऊपर स्थान से उतरी ही परी पेगर लग रही थी। छोटा सा गोल शेप का टीका इसके माथे पर टिका हुआ था। सराही गर्दन में गोल्डन नफीस सा नेकलेस मौजूद था और गोल्ड के झुमके कानों में पहने वो सादगी में जब डाल रही थी। नादिया लाशोरी तौर पर खुद को नगीने के सामने काफी कमतर महसूस कर रही थी। नगीना का सुरख सफेद रंग इसे इंतहाई पुरकश लग रहा था, जबकि नगीना के साफ शफाफ रंग के मुकाबले में नादी का रंग कदमी था। नादी के चेहरे मायूस से फैलने लगी। नगीना बच्चे आसी बेगम जो कब से बेटी को चुप कराने के साथ साथ खुद भी रोई जा रही थी। अम्मा भी की आवाज़ सुनकर नगीना से लग गई। अम्मा भी की आवाज़ सुनकर नगीना भी नामहसूस अंदाज में अपने आंसू साफ करते हुए अम्मा भी के पास आकर खड़ेगी। नादिया को देखकर नगीना पल भर को गंग रहेगी, लेकिन फिर अपने फुल स्पीड में दबड़ते दिल को कंपोज किया। जी अम्मा भी, इसने महसूस धीमी और मध्यम आवाज़ में कमरे में भरी। नादिया तुमसे मिलने आई है बेटा। अम्मा भी के लहजे में कोई बनावट नहीं थी। वो खुशगवार है जब नगीना से नादिया के मुतालिक बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। नगीना ने नादिया के साथ गले मिलते हुए मुस्कुराते रहे कहा वालेकुम सलाम। वो भी अब कुछ हद तक खुद परसुकून हो गई थी, इसलिए घबराहट को एक जानब रखकर धीमी आवाज़ बोली। कुछ ही लम्हे बाद फैसल साहब 2 मुअज़्ज़ज़ मर्द हज़रात के साथ कमरे में दाखिल हुए। दरअसल वो नगीना से निकाह नामे पर दस्तखत करवाने आए थे। इस मौके पर कमरे में मौजूद हर फर्द की आंख अफशार थी। नगीना की दबदबी सिसकियां कमरे में फेरी हुई खामोशी को तोड़ रही थी। इसने निकाह नामे पर कामते हाथों से दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद फैसल साहब ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। नगीना अब अपना ज़बत खो चुकी थी। अब की हिचकियां बंद होने लगी। नादिया पर कशिश मासूम लड़की बेहद पसंद आई, जिसके चेहरे पर कोई तलखी या नफरत का नसर सरे से मौजूद नहीं था। नादिया का खुद थाम के नगीना इसके साथ हद तक मेज़र रवैया अख्तियार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फैसल साहब नगीना के माथे पर बोझ देकर कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अब अम्मा भी नगीना को खुद से लगाई इसे रोने से मना कर रही थी। अशर और नगीना का निकाह हो चुका था। सब मुबारक शोर का सजा में गूंज उठी। मेरी तरफ से भी शादी की मुबारकबाद वसूल करो अशर साहब। अल्तमश की बारी गबरू आवाज़ मर्दान हाने में उभरी। पुलिस से जानब अशर को जानदार के हफ्जा में तहलीला। अल्तमश ने सफ़ेद बेदाग कलफशुदा सलवार कमीज ज़ेबदन किया हुआ था। हमेशा की तरह हाथ से पुरकश वजी लग रहे थे, जबकि अशर ने आप वाइट कलर की नफीस शेरवानी ज़ेबदन की हुई थी। खैर मुबारक। मैंने सोचा शादी के बाद जब अल्तमश साहब जैसे जालिम इंसान गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं, तो मेरे लिए भी शादी खासा खुशगवार तजर्बा साबित हो सकती है, अशर ने शरारती अंदाज में कहा। अल्तमश ने अशर के शौक और शरीर लहजे से गुरा, पर वह मुसलसल इन्हें छुड़ाने के लिए मुस्कुराया जा रहा था। नगीना का ख्याल रखना अशर, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अल्तमश ने इधर उधर निगाह कर संजीदगी कहा, जैसे वो अशर को खबरदार करना चाह रहे थे। नगीना के लिए हमेशा से इनके दिल में पाकीज़ा और नरम गोशा मौजूद था,
तो मुझे अभी से डराता धमकाना चाह रहे हैं, अशर ने मसनूई खौफ चेहरे पर तारी करते हुए कहा। यही समझ लो, इन्होंने कंधे छाए। फिक्र मत करो, तुम्हारी कजन साहिबा को कभी शिकायत नहीं मिलेगी, अशर ने संजीदगी से कहा। कुछ ही देर बाद कुर्सी का शोर हुआ तो अशर और इल्तमास साहिब फैसल साहब की रहनुमाई में हवेली के अंदर दाखिल हुए। नादिया ने आज सफ़ेद रंग की खूबसूरत सी मिक्सी जर्दन की हुई थी, साथ ही गोल्डन और सफ़ेद रंग के हिजाब में इसका पुरनूर पाकीज़ा चेहरा नुमाया था। वो दोनों मियाँ बीवी सफ़ेद रंग के कपड़ों में मबलूस नजर लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। नादिया ने तवश को नाच में दाखिल होता देखा तो इसकी गुलाबी फिंकरें जैसे होंठ तबस्सुम बिखना। अल्ताफ ने नादी को मुसहर होते देख लिया था, इसलिए वो बिल्ली कशी से मुस्कुराकर नादी के साथ जाकर खड़े हो गए। रुखसती हो चुकी थी क्योंकि निकाह सादगी से होता है, इसलिए मोहस खानदान के चंद लोग ही बारात में शरीक थे। और फिर ये छोटा सा 3-4 गाड़ियों पर मश्तूल काफिला वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन एक अशर के कमरे में पहुंचा दी गया और मुसलसल अशर के कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की फूली खुशबू फैली हुई थी। अम्मा भी कुछ देर पहले ही नगीने को जबरदस्ती जूस पिला के गई थी। कमरे का दरवाजा आसी से खुला। अशर को कमरे में दाखिल होता देख पहले ड्रेसिंग टेबल की समझ बढ़ गया। नगीने की हथेली पसीने से शराब हो गई थी। इसने ड्रेसिंग टेबल से दराज से एक बॉक्स निकाला और शेरवानी के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए पुरसुकून अंदाज में नगीने के सामने बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम मुस्कुरा कर तरह जमे सलामत भेजी की। नगीना का दिल डूबने लगा अशर की घबरी आवाज़ पर सुनकर। कैसी हो लड़की? वो माजी की तरह आज भी नगीना को लड़की के मुखातब कर रहा था। ठीक हो? नगीना की घबरी हुई आवाज़ मातम में उभरी। यार परसुकून होकर बैठो पहले। अशर ने इसके टुकड़े वजूद पर चोट की तो ठीक होकर बैठी। तुम क्या तुम पर अम्मा भी या मामा जी की किसी किस्म का दबाव डाला है रिश्ते के लिए? संजीदगी से पूछा। नहीं। नगीना ने फौरन नफी में सिर लाया, गोया वो अशर की बात से मुतफिक नहीं थी। तो फिर क्या तुमने दिली अमदगी से इस रिश्ते के लिए हामी भरी है? इस मतलब अशर का लहजा नरम और संजीदा था। जी। नगीना ने धीमी आवाज़ में जवाब करवाई कि ठीक है, अब तुम यूं घबराओ वरना बंद करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी। अशर ने वो बॉक्स खोला जो कब से इससे नगीना के सामने बेड पर सामने रख दिया था। इस बॉक्स में डायमंड का नफीस सा डायमंड सेट मौजूद था। नगीना ने कांपते हाथों से बॉक्स थामा और अपने लहंगा संभालती बेड से उठ खड़ी हुई। अशर ने भी इसकी मदद की बेड से उतरने में। इसके बाद नगीना वाशरूम में घुस गई जबकि अशर ड्रेसिंग रूम की समझ बढ़ गया। कुछ ही लम्हा बाद वो आरामदेह कपड़ों में मबलूस कमरे में दाखिल हुआ। अशर बेड पे बैठा शायद नगीना का ही इंतजार कर रहा था। नगीना छोटे छोटे कदम उठाती बेड की दूसरी समझ बढ़ गई। आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी, अशर ने इसके हाथ थामते हुए लो देते लहजे में कहा। नगीना घबराकर नजर झुकाई। नगीना मैं अब भी तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ जुड़ने वाले इस नए रिश्ते से मुतमईन हो? न जाने क्यों अशर बार बार इसी से ये सवाल कर। जी मैं मुतमईन हूँ। मुझे अपने अम्मा बाबा जान को उम्र भर का दुख नहीं देना था। मैंने यही सोच ली कि बाबा जान ने जिसके साथ भी मेरी शादी करनी चाहिए मैं इस इंसान से खामोशी से शादी कर लूँगी, मुकम्मल दिली और दिमागी आमादगी के साथ। नगीना जब बोली तो हमेशा की तरह उसकी लहजा अंदाज मजबूत था। मेरी तरफ से कभी तुम्हें कोई दुख कर नहीं मिलेगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी तुम्हें खुश रखूं। अशर ने खासा मानी खेज निगाहों से नगीना को देखते हुए कहा, जिस पर नगीना ने चुपकर सर झुका ली और अशर ने मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए नगीना की समत कदमी पेश कदमी की, जिस पर सर झुका गई। और अशर ने इंतहाई खूबसूरती से नगीना को खुद में समेट लिया। 6 साल बाद। नादिया कबीर कब से रो रहा है यार? अल्तमश चिल्लाई दरवाजे के कानों में गूंजी। अल्तमश खासे बरहम दिखाई दे रहे थे। नादिया के जैसे बाहर झांक अल्तमश को देखा जो कबीर को उठाई डाइनिंग रूम में दाखिल हुए, जबकि कबीर बासाब जो कब से खला पाड़े अपने पसंदीदा शोल फरमा रहे थे। अम्मा अपनी माँ का चेहरा देखकर एकदम खामोश हो गई। 2 साल कबीर अपनी माँ बाप की आंख का तारा था, लेकिन कबीर अल्तमश से ज्यादा नादिया के करीब था, जबकि अक्सर अल्तमश नगीना को आंखें दिखाते रहते थे। मेरे शहजादा अच्छे बच्चे हैं, वो अपनी माँ को तंग नहीं करते। आपने फजूल में मेरे बेटे को बदनाम किया हुआ है। नादिया ने अल्तमश के हाथों से खिलखिलाते गोल मोटो से कबीर को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, कुछ देर पहले तक तो आपके शहजादे खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे, रो रो के पूरा बेडरूम सर पे उठाया, लेकिन अपने बाबू की तरह नादिया अल्तमश को देखकर इसकी आंखों में डी ठंड पड़ गई है। अल्तमश ने बेनियाजी से कहा, जबकि इसके लहजे में झलकती शरारत नादिया से पोशीदा नहीं रहेगी। नादिया ने इसकी बात सुनकर अपनी मुस्कुराहट हटवाई। खुल कर मुस्कुरा लो, वैसे भी तुम्हें मेरी बातें दिलचस्प लगती हैं। अल्तमश ने अजली लापरवाही से कहा, शुरू में आप मुझे हाथ से डिसेंट मर्द लगते थे, लेकिन अब जब शादी को 6 साल हो गए तो एक चीज़ मैं आज वसूल से कह सकती हूँ कि आप पर डिसेंट लफ्ज़ का डी भी सूट नहीं करता। नादिया कबीर को उठाते हुए स्ट्रिंग की समझ बढ़ गई। अब मैंने कौन सी ऐसी वैसी हरकत की जो तुम्हें मेरी डिसेंट होने पर शक हो रहा है? अल्तमश भी इसके साथ ही स्ट्रिंग चढ़ते हुए ऐसी वैसी हरकत पर जोर देकर मौनी हैज स्टार्टी अंदाज में नादिया से इस्तफार करने लगा। मेरी तौबा, नादिया ने बाकायदा खाना को हाथ लगाते कहा और कबीर को फीडर पिलाने बैठ की। तुम्हें तौबा करनी भी चाहिए।
जैसे इंसान को हर वक्त तड़पाती रहती हो, सोचो कितना गुनाह मिलता रहेगा हो तुम्हें। अल्तमश फिर भी बात नहीं आया और नगीना की नाक खींच कर मुस्कुराते हुए बोला, नादिया किस तरह नाक खींचना। जहाँ नादिया ने अल्तमश को अबरू चाका गुरा, वहीं कबीर साहब भी अपनी माँ के नाक खींचने जाने पर इल्तिजाइया तौर पर अपने मुंह से फीडर हटाकर अल्तमश को हफ्की से गुने लगी। अल्तमश के साथ साथ नादिया भी कबीर की हरकत नोट की थी, जिस पर दोनों बेयकीनी और हैरानी से दूसरे को दिखने लगी और आखिर में दोनों ही कबीर की प्यारी सी हरकत पर दिलकशी अंदाज में मुस्कुराए। मेरा ख्याल है तुम्हारा बेटा बड़ा होकर मुझे खासा टफ टाइम देगा। अल्तमश ने लहजे में विचार के समाते हुए कहा, जी बिल्कुल मेरे बेटा, अम्मा अपनी अम्मा की ताकत तो सहारा बनेगा। नादिया बेगम ने कबीर के फूले हुए गाल चूमते हुए कहा। थोड़ी बाद में मांझ आना शुरू हो चुके थे, तब तक ये लॉन के जाकर सारी डेकोरेशन देखते थे। अल्तमश ने संजीदगी से कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आज कबीर अल्तमश की सालगिरह थी। कबीर की दूसरी सालगिरह अल्तमश ने हाथ से बड़े पैमाने पर जश्न का मुंतहिद किया था। नाहिदा बेगम राहिम के साथ बड़ी हवेली पहुंच गई थी। राहिम ने भी नाहिदा बेगम पसंद की लड़की से सायरा से शादी कर ली थी। सायरा नादिया बेगम की बहन की बेटी थी। सायरा काफी सुलझी हुई लड़की थी। नादिया नाहिदा बेगम के साथ मिली, गर्मजोशी से मिली थी। कुछ देर बाद अशर नगीना भी बड़ी हवेली पहुंच गए। अशर के हाथों में नन्ही सी एमन मौजूद थी। एक साल एमन शक्ल व सूरत में नगीना को कापी थी। कबीर कहाँ है नादिया? नगीना ने नादिया के साथ गले मिलते हुए कबीर के बारे में पूछा। आप ही थोड़ी देर पहले ही अल्तमश मर्दाना खाने की जानब लेके गए हैं। नादिया ने मुस्कुराते हुए जिन नगीना को जवाब दिया। जब अशर की आवाज़ नादिया के समातों में, बड़ी भाभी कैसी हैं आप? अशर ने के साथ ही इसके सर पर शफकत से हाथ रख दिया। कहा, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? नादिया ने पूछा, मैं भी ठीक हूँ। अशर ने शादी की कहा, जबकि नादिया ने आस्तीके से अमन को नगीने को गोद से उठा लिया। एसपी शेब की फैमिली भी बड़ी हवेली पहुंच गई थी। शेब की बीवी शहर काफी शरीर और जिंदा दिल लड़की थी। नादिया और नगीने के शहर के साथ साथ काफी अच्छी जोची होगी थी। कुछ देर बाद तमाशा वाइट शलवार का महमूद शहाना अंदाज में लाउंज में दाखिल हुए। इन्हें लाउंज में दाखिल होते देख जहाँ सबकी आंखों में अल्तमश की बेमिसाल शख्सियत को देकर ताशुबरी थी, वही नादी के दिल ने एक बेट मिस की थी। नगीना, अशर को तुम नहीं सुधार सकती। तुम्हारे मियाँ अभी भी बाज नहीं आता जबान दराजी से। नगीने के सर पर हाथ रखते हुए मसनू गुस्से से बोले, भाई मैं भला क्या कह सकती हैं इन्हें? नगीना ने कबीर को अपनी गोद में उठाते बेचारगी से कहा, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर रहे हो चलाक इंसान। अशर जो अभी खामोशी से एक जानब खड़े अल्तमश की बातें सुन रहा था, दांत पीस कर बोला, मुझे नगीने की कान भरने की जरूरत नहीं, वो अपने शोर को अच्छी हरकतों से आगाह है। अल्तमश नादिया को गहरी निगाह से देखते हुए अशर को ललकारा। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशान है। अशर शरीर आवाज सुनकर अल्तमश खुद को कंपोज करता अशर को नागारे से गुने लगा। नगीना बहुत शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अशर ने से आंखें लगाई। फिलहाल नगीना को अशर को जी भर कर चढ़ाने का मौका मिल गया था। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। नादिया एमन को नगीना के हवाले करती। किचन की तमत बढ़ गई। तुम्हें घर जाकर देख लूंगा। सारी चहचहाट तुम्हारी पल में भी होड़न छू नहीं हुई ना तक के ना। अशर ने अपनी बेटी को फूले हुए गाल छूते हुए नगीना से कहा, जबकि इसके लिए जब बमती मानी हैज को बांधते नगीना छपकी। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मोहम्मद से मुस्कुरा कर लेजे में बछवार की समाती हुई बोली, थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे चेहरे के साथ साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अफसोस तो तुम्हारी इंतकाम लेने वाली हरकतों से काम ले जाती हो। अशर ने नगीने कान में सरगोशी का माने हैजी से कहा, आप कभी सुधर ही नहीं सकते अशर। नगीने ने अपने सुर्ख पड़ते चेहरे से गुस्सा नमदार करते हुए कहा, लेकिन नगीना की गैर होती हालत को मद्देनजर रखते हुए अशर शरारती अंदाज में खोले से मुस्कुराकर खामोश हो गया। अशर को अपनी शोही शरीर लहजे की वजह से बहुत जल्द ही नगीने के दिल में अपनी जगह बना ली थी और अशर की बेलौस मोहब्बत का यही नतीजा निकला था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल दिखाई देते थे। नगीने की जिंदगी में खुशियों का बसेरा था, कहाँ गायबों से बसे। कुछ ख्याल भी है तुम्हें अपनी मियाँ का? अल्तमश ने गुस्सीली लहजे में से छिड़का। दादी ने सपाट कर इन्हें देखा, जो ऑफ वाइट कलर के शलवार कमीज नूडल्स के शहजादी से कम नहीं लग रहे थे। ऊपर से इनकी हफ्की भरी हुई आंखें में अकेली औरत को इतने बड़ा घर में सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। नादिया ने मुंह फुलाकर कहा, आज के दिन तुम पर काम का कोई दबाव नहीं डाला गया था। इस सब कामों के लिए हवेली में मुलाजमों की फौज है, पर तुम्हें पता नहीं क्यों सुकून नहीं है मिलता चुप बैठकर। अल्तमश ने आंखें सिकुड़कर ऐसे घुरा, मुझे ये सब ऐसे ठीक नहीं लगता। मुझे आदत है हर के फुल के घर की काम करने की। नादिया ने नरमी से कहा, तुम पर सिर्फ रंग खूब जाता है। नादिया ने आइस और गोल्डन कॉम्बिनेशन का खूबसूरत ड्रेस जब तन किया हुआ था। अल्तमश ने इसकी नकद बातें कहा और तब ही कबीर अल्तमश की धुआंधार रोने की आवाज़ किचन में उभरी। कबीर नादिया बेगम को की गोद में था, जबकि नादिया बेगम को देख अल्तमश भर को शर्मिंदा से सर झुका गया और आखिर में गुस्सा कर बालों में हाथ फेरते हुए किचन से बाहर जाने लगे। लेकिन जाते जाते इन्होंने अपने गोल मोटोल बेटे को ऐसे देखा जैसे वो ही अल्तमश का वाहिद जानी दुश्मन हो। नादिया ने मुस्कुराहट दबाकर कबीर को माथा
थामा। कुछ देर बाद इंतहाई खुशगवार माहौल में सरगर्दा के कटा गया। सबने एक बार फिर से कबीर को ढेरों दुआएं दी और यूं अचानक एक खूबसूरत शाम अपने अख्ताम को पहुंची। दादी ने अपने इन्हें मुखताब किया जो सुबह सुबह ताज़ा दम होकर कहीं जाने के लिए तैयारी में दिखाई दे रहे थे। कब्रिस्तान जा रहा हूँ। अल्तमश ने मुख्तसर जवाब दिया। नादी वे अब बात समेटती हुए अल्तमश के रूबरू खड़ी होगी। क्या आज मैं आपके साथ चल सकती हूँ? इसने झिझकते हुए पूछा। तुम क्या करोगी वहां जाकर? अल्तमश ने चेन और सेलफोन उठाते हुए पूछा। मुझे सिर्फ एक बार आपके साथ कब्रिस्तान जाना है, प्लीज निकाल मत कीजिएगा। बोलते जाइए ले जाए मोरी। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। अल्तमश में हामी भरते हुए कहा। वो खुद कमरे से बाहर निकल गए। कबीर गहरी नींद में सो रहा था। नादिर ने सदफ से कबीर का ख्याल रखने का कहा। खुद गिराज की समझ बढ़ गई। अल्तमश और नगीना दोनों ही स्याह रंग के कपड़े में मबलूस थे। रास्ते में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कब्रिस्तान के बाहर गुलाबों के फूल के मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए थे। अल्तमश नवाज से गुलाब के फूल खरीदे और नादिया का हाथ थाम कर कब्रिस्तान के अंदर चल दिए। नादिया की आंखें भीगी हुई थी। वो आज पहली बार हसाम के आखिरी आरामगाह पर आई थी। अल्तमश ने सर पर रुमाल बांधा हुआ था। इनके चेहरे पर कहर गर्व आज भी रकम था। एक अजीब सी बेबसी और दुख के साथ साए इनके चेहरे पर लहरा रहे थे। वो दोनों हसाम हटक की कब्र के पास सामने रुके। अल्तमश ने गुलास की पंखड़ियां हसाम की कब्र पर बिखेरी। नादी की निगाहें अल्तमश के सुर चेहरे पर मरकूज थी। कोई एक इनके अंदर छुपे कर्ब और तकलीफ का अंदाजा लगाना चाह रही हो। अल्तमश ने दवा के लिए हाथ उठाए तो नादी भीगी आंखों से मेरी दुआ कर मांगने लगी। जिंदगी में चाहे जितनी खुशियां आ जाएं, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी के खिलाफ कोई जीरो मुकम्मल नहीं कर सकता मेरी जिंदगी में। बस सरगशी में बोल रहे थे। नादी ने इनकी बातें वह सुन ली थी। इन्होंने दुआ मांग ली थी। अल्तमश चेहरे भी आंसू से तर था। चलें घर, कबीर नींद से उठेगा तो परेशान हो जाएगा। खाली कमरा लेगा। अल्तमश ने खुद को कंपोज करते हुए नरमी से कहा। नादवी ने सवाल में सर अल्तमश ने दवाई निगाह हसाम की कब्र पर डाली। आगे बढ़ गए। ऐसे मत देखो मुझे। अल्तमश ने इससे देखे बगैर ही कहा। नादिया, अल्लाह पाक को शायद ही मंजूर था, लेकिन अब मेरी यही दुआ है कि मेरे हिसाब को जन्नत में आला मुकाम मिले। अल्तमश ने दादी के लिए फ्रंट सीट का डोर खोलते हुए बेतास लहजे में कहा। अल्तमश, मुझे आप पर फख्र है, क्योंकि जो इंसान ये समझते हैं अल्लाह जो करते हैं हमारे लिए बेहतर है, वो कमाल का ईमान रखते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे हम सफ़र की ईमान अपने रब पर मजबूत है। नादिया ने इनके हाथ पर अपने दोनों हाथ रखते हुए गोया हुई और यूं वो दोनों अपनी मंजिल की जानब रवाना हुए। और कैसा लगा आपको हमारा ये वाला नावल? अगर अच्छा लगे है तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नई नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।